तो आज की डेट में 30 lakhs की SIP जा रही है. SIP, it's not an intelligent tool. Okay, it's a very dumb tool. Please don't be dependent on any male member in the family. तो जितनी भी इनकम हम करते हैं हम और कहीं दिमाग नहीं लगाते, हम सारी की सारी SIP करते हैं. I promise to myself कि मुझे भी ये वन इडियट बन के दिखाना है. एंड ऑल्सो मुझे रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदनी. डोंट गो बाय जस्ट लार्ज नंबर्स की. नहीं 10 करोड़ हो गया तो लाइफ विल बी वेरी गुड. द ओनली वन स्किल विच आई लुक और थिंक इज हंगर फॉर ग्रोथ. एक की भी नौकरी चली गई ना तो सारा स्ट्रेस हो जाता है, घर में उदासी आ जाती है. Communication is the biggest, one of the biggest money making skills in the world. If you're a good communicator, you can make a lot of money. Hi everyone, welcome to a new episode of our podcast, and this is very important because 2025 is the year when you will also plan कि आपको कैसे financial planning अपनी करनी है efficient. And who better than Gajen sir, who is present with us to share his nuggets of wisdom so that you can plan effectively for your financial thing, everything that you're doing in 2025. And sir comes with lot of experience, and he is the leading voice in India for mutual fund investment and financial planning. Thank you so much, sir, for taking out time for this session today. The pleasure is all mine, Shashank. I'm so happy to be on this podcast, and I hope 2025 brings a lot of positive vibes in our lives, in our work culture, and also with our investments. Sure, sir. Sir, I'd like to start by understanding your story. Can you tell us your journey into the finance industry and what inspired you to pursue a career in financial planning? So, Shashank, it was all by accident, I would say. When I was doing my MBA, I graduated from IMI in New Delhi. This was year 2004, and उस वक्त there was no idea कि where do you want to go. There was nothing called career counselors. There would nobody be there to guide you कि आपके strength के हिसाब से which is the right industry for you, right company. So all those companies which used to come to campus, we would apply, and the biggest criteria, just like in mutual funds, the biggest criteria for people is past performance returns. The biggest criteria for getting any job offer is the salary package. कितना मिलता है, कितना मिलती है, right? You would not even bother about company work क्या है. You would just look at the bottom line. That I think in hindsight it was a very wrong approach to look at, because today I see a lot of people, though earning well, but they are 90% of them are into wrong industries. They're into wrong career, and I believe Shashank, you run a very good platform and career, channel on for salaried people who are into different industries, careers. But I'm sure when you take a poll from these people and you would ask them, are you really happy with your job? Are you doing your dream thing that you wanted to do in life? Or are you just doing for money? I'll not be surprised if 90% of the people say, look, we're doing because we don't have a choice. We have Right. EMIs on our head, or we have family to take care of. And, this is what society expects from us. So I was lucky कि I got into mutual fund industry, but I didn't know anything about that before my interview. इंटरव्यू के लिए मैंने वो इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी पढ़ाई की, एंड देन आई जस्ट गॉट सेलेक्टेड. आई केम टू बॉम्बे. Even on day one, I had no idea about what my job is. And 2004 mutual fund industry was very new in India. Yeah, right. लोगों को पता ही नहीं था कि SIP क्या होती है. ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, इतना कैंपेन नहीं था. सो आई जॉइन दैट, बट व्हेन आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद पीपल, then I realized कि this is such a simple industry, but financial literacy is very low in our country. So, and I realized that I have the strength to explain a very complicated topics in simple language. तो तब से मैंने इन्वेस्टर्स के साथ ये सेशंस ऐसे लेने शुरू किए हैं, and I would see that investors really get convinced after those sessions and they would start doing it. But मजे की बात क्या है, शशांक, even though while I was advising investors on their own money, in 2004 I was not putting my money where my mouth was, because मैं 24 years का old था, मुझे खुद को पूरा समझ नहीं था. बट बिकॉज यू आर MBA and you could talk smart, and जो आपके bosses ने आपको बताया, you could just go out and sell it to people. So Right. first 3, 4, 5 years, I just kept on doing that. But I realized that there was a big gap out there. And imagine if this is happening in Bombay and Delhi, what would be happening in tier 3, tier 4 cities and towns? Yeah, तो very low awareness. Yeah. तो उसी दिन मैंने रियलाइज किया कि एक दिन we have to start our own firm. Of course, I can't start at the age of 24, 25 because nobody will take me seriously, and I have no connections. See, today you build a wonderful network of more than 1 million across your channels, right? But it took you many years to build that.
to build Right. to get that trust of your viewers, of the community that you have built. You have done so much of value addition. The session that you're doing today is also a value addition for a lot of your members. Right. So now when you ask people to come to you, they will come because they've seen your track record. They've known Shashank for a while. They have that trust with you. So when I was 24, nobody would come to me. People were coming because of the company where I was working, UTI Mutual Fund. That had a Right. trust and that had, the name. I said one day I have to create my own firm like this where I decide what is good for my investors. I don't have to sell anything to anyone, and I will only invest my clients' money where I have invested my family's hard-earned money. Right. And that time, this was very rare in our country. Mis-selling was at core. In financial services industry is known for mis-selling. Financial services industry is known for lack of trust. People go to banks missell them a lot of stuff. We have seen all these stories with a lot of these salaried people because we don't have time, and bankers can see our money in their bank accounts easily, right? Right. They Right. know Right. कि शशांक के अकाउंट में 15 लाख रुपए पड़े हैं for last 6 months, Right. and they can call you and say, sir, आपका ये पैसा कुछ नहीं करा, आप ये कर लो. And Right. because you have no idea, you will just trust your banker and you'll do it. So they were selling a lot of insurance policies in 2009. They were selling mutual fund kit, new fund offers. And I didn't like that because somebody's hard-earned money was being played, right? So I said, when we start our company, Etika, and Etika नाम हमको 3 महीना लगे सोचने में. It's a very unique name, short, sweet, people can What's remember. the story behind the name, sir? तो see, I always believe that कि जब कुछ लाइफ में बड़ा करना है, अच्छा करना है, तो this will become a brand someday. So Right. इसीलिए आप फिर वो ऐसा नाम करो कि it is easy to remember. Right, a lot of advisors I've seen, they don't have brand name, they just वो लोग अपना नाम का कंपनी खोल देते हैं, like if Gajendra Kothari and company. Hmm. So it doesn't convey a huge message, and then everybody will think it is only about Gajendra Kothari. There's nobody else. It is a Right. proprietary firm. So from day one, our vision was big. We want to create a good institution which can which can be there for decades, and it has to resonate with what you're doing. So if Etica means ethics in Portuguese. Nice. तो 3 महीना हमें लगे इसको सोचने में कि हम क्या नाम रखें विच इज यूनिक कॉमन. एंड हमारी इंडस्ट्री में इट इज ऑल अबाउट एथिक्स इफ यू आर डूइंग राइट थिंग. सो आई डिड CFA कोर्स ऑल्सो. तो CFA में एक सब्जेक्ट है शशांक एथिक्स पे. The first in level 1, the biggest area of one of the subject is ethics. Right. There it talks about why you should be ethical, and if you do what is right for the client, in the long term it will benefit you multifold, right? Right. So इसीलिए हमने वो नाम रखा ethics, Etica, which means ethics, and we started in 2009 November. हमने start किया. So today we have completed 15 years. I can't believe this journey has been 15 years now. We have enjoyed this journey thoroughly. Today we are managing money for almost 10,000 customers across the world. Right. And 2,500 crores is what we are managing. We have 40 people, amazing team. And the beauty about our business is we never had one. See, in a lot of these businesses or entrepreneurship or firms, the biggest challenge, what do you think? What is the biggest challenge for any entrepreneur or any person who is starting the new venture? I think the biggest is getting right set of people in place. Right. एक तो एम्प्लॉइज राइट सेट ऑफ पीपल कहाँ से आएंगे, एंड सेकेंडली क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, राइट? Right. Getting आपने भी business. जब चैनल चालू किया तो यू आर ऑलवेज वरीड कि व्यूअर्स कहाँ से आएंगे. एंड आज की डेट में ऐसे और भी 500 पॉडकास्टर्स हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं. बट एंड देयर अ सी आज की डेट में सबसे जो कीमती रिसोर्स है, आई बिलीव इन दिस एरा, इज द अटेंशन स्पैन ऑफ Right. पीपल. करेक्ट? यू वुड अंडरस्टैंड बेटर देन मी. तो हाउ डू यू गेट पीपल कमिंग टू योर प्लेटफॉर्म, टू योर चैनल? Right. Same way, why should investors come to us, right? But luckily, because we believe that what we're doing is so right, good for the customers, we never had to worry about this. The only thing we decided, we have to keep on educating people in the right sense. We have done more than 1,000 seminars till date across India and even beyond India. आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, रोटरी क्लब्स, चाहे वो 10 मेंबर हो चाहे 50 मेंबर हो. Wherever there was an opportunity, we have done seminar, and in the true sense, in those seminars,
we've never marketed about our company, about us. We just spoke what to be said, in an educational form. People liked that content. People liked our story. People said, "यार ये तो इतना simple है. Why didn't nobody tell us before?" Right. And then after the event, after the seminar, they would themselves come out to us and says, "Sir, we liked your the entire presentation. Can you help us manage our family's money?" So Right. few of them would come to us, and then this is how we got our initial clients, and this is how over the 10 years we built Etica Well. So 90% of the clients, those who've come to us, have come by watching. And see, podcast तो अभी 3-4 साल में आए हैं trend. Right. Before Right. COVID, it was always offline world. That's why we have done 1,000 seminars. Today, even 5 podcasts will get you 5x numbers what you've done in the last 15 years. That's the power of internet. But the story has remained the same over the last 15 years. Uh, but but today, in last 6 months, we've received more than 2,000 inquiries just because of these podcasts. Because now anybody can watch this from anywhere in the world at Right. their own pace, and because the story is so powerful, the content is so powerful, it is so authentic, and you are telling in a language which people are able to understand. Right. And that is where I think things clicked, and so we have got investors because of these seminars and these sessions. The biggest, but we feel happy about this, but the biggest reason for happiness is we've got huge number of clients because of referrals from my existing investors. Right. In any business, your customer is your biggest salesperson. Retention is the key, basically. अगर आपका कस्टमर ही आपके लिए सेल्स कर रहा है तो और आपको क्या चाहिए? ही इज अ फ्री सेल्स पर्सन, सेल्स पीपल फॉर यू, डोंट हैव टू हायर सेल्स टीम. वो Right. आपके लिए फ्री में कर रहा है, और आपको मतलब वो अच्छे कस्टमर्स ला के दे रहा है, Right. राइट? बिकॉज उसने वो जर्नी देखी है, तो वो सामने वालों को बताता है कि दिस इज व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम एटिका एंड दिस इज व्हाट दे विल डू. तो यू आर गेटिंग द राइट सेट ऑफ क्लाइंट्स ऑल्सो. So we always try to build a great team and great culture in our company. That's why आपने आज की दुनिया में एवरीथिंग इज अबाउट टारगेट्स, रेवेन्यूज, नंबर्स, एक्सेल शीट्स. हमने कभी भी एक्सेल शीट्स, टारगेट्स, नंबर्स कभी नहीं बनाए ना खुद के लिए, बिकॉज आई एम ऑलवेज वरीड ऑफ नंबर्स. मुझे जब बहुत सारे नंबर्स दिखते हैं ना, तो आई गेट मुझे डर लगता है कि अरे यार इतने हमने डाल दिए, कैसे अचीव होंगे. यू गेट नर्वस. सो आई सेड मेहनत करेंगे, विल वर्क हार्ड, बट विदाउट एनी नंबर्स, विदाउट एनी टारगेट्स. So on that point, I'd like to touch base on one thing. So there were recent videos from different banks जहाँ पे दिख रहा था कि top employees were shouting at their juniors for doing particular set of numbers. Do you feel this can be one of the key reasons why there is so much mis-selling, because these people are also under tremendous pressure to deliver on those numbers? See, actually, I don't blame those poor guys who are at the bottom of the chain in those banks. उनकी कोई गलती नहीं है. The problem is always at the top. Right. ये सारे numbers top से आते हैं because the top management, in many cases, these are listed companies, right? Banks. So they want their share prices to go up because they are answerable to shareholders and list. तो अगर उनको हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखानी है 15%, 20%, so they will push these hard targets down management, right? टॉप से मिडिल में आएगा, मिडिल से बॉटम में आएगा. तो वो बेचारा जो एकदम बॉटम में आदमी है, वो क्या करेगा? ही इज टू फॉलो बिकॉज व्हाट हिज बॉसेस से, राइट? तो अनफॉर्चुनेटली वी इन कोविड टाइम्स वी सॉ दोस कल्चर्स कमिंग आउट इन. सोचो कोविड में, मतलब आपके पास चॉइस ही नहीं, आप किसी से आके मिल नहीं सकते हो, एंड दोस बॉसेस आर शाउटिंग व्हाट आर यू डूइंग, Right. राइट? यहाँ पे लोगों की लाइफ की पड़ी और आप यहाँ पे बिजनेस का रेवेन्यूज के लिए कर रहे हो. अनफॉर्चुनेटली वी हैव ऑल इम्पोर्टेड दिस फ्रॉम द वेस्ट. ये सब हमने Right. यूएस वगैरह से लिया है, क्योंकि सब वहां से कॉन्सेप्ट शुरू हुए थे. ये सब था नहीं इंडिया में पहले कभी. एंड उससे क्या होता है कि यू क्रिएट अ रॉन्ग कल्चर इन द कंपनी. यू ट्राई टू डू एवरीथिंग बाय हुक और क्रुक. Right. एंड खास सी, hook or crook can work in other business. If I'm, let's say, if I'm selling you iPhones, or if I'm selling you anything, any products, I may cheat you still. And आपको नुकसान क्या होगा? वो 10,000, 20,000, 50,000 का, और एक नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करोगे. Right. But there are 2 or 3 areas where I should never be cheating in my life. I always, one is education sector. हमने बायजूस वाला केस देखा, राइट? कंपनी वेयर दे वर अगेन वेरी एग्रेसिव इन मार्केटिंग, एंड लुक व्हाट हैपेंड. आज जो इतनी सारी पेरेंट्स की जो बद्दुआ लगती है कि आपने, और ऐसे ऐसे लोगों को बेचा गया जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, एंड दे यूज्ड जो टू, लोन पे कर पा रहे और थे वो पे नहीं कर पा रहे थे, उनको थ्रेट्स आ रहे थे. सोचो, 1-1 लाख रुपए ट्यूशन के लिए कभी हमने जिंदगी में नहीं सोचा. उन्होंने, वो बच्चों की स्कूल की फीस नहीं, और आप बायजूस की फीस बात कर रहे हो.
तो ये टॉक्सिक कल्चर नहीं चलता है. वन इज हेल्थ, सेकेंड वन इज एजुकेशन, सेकेंड इज हेल्थ केयर में वी अगेन सॉ इन कोविड the kind of rates being charged for hospitalization, right? Right. 5x. So how not many people are able to afford good healthcare in India. And third is wealth, because people have come to us with a hard-earned money. मेरा एक फ्रेंड एक प्राइवेट बैंक में काम करता था गुड़गांव में, बिकॉज यू आर ऑल्सो बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव एंड आई कैन रिलेट टू दिस स्टोरी. ही वॉज द ब्रांच मैनेजर ऑफ लीडिंग बैंक एंड 65-year-old लेडी का उसने उसको जबरदस्ती 50 लाख रुपए 5 year क्लोज एंडेड फंड में लगाना पड़ा बिकॉज बैंक का टारगेट था. Right. कैन यू इमेजिन 65-year-old लेडी जिसको लिक्विडिटी की जरूरत है और आप मैं उसका पैसा 7% या 9% प्रोडक्ट में 5 साल के लिए पैसा लॉक इन कर रहा हूँ. द पुअर लेडी डजंट इवन नो, राइट? बट बैंक को उसमें ज्यादा कमीशन मिल रहे थे. बैंक ने उनको बोला कि आपको यही बेचना है, आई डोंट केयर, एंड दैट पुअर गाय हैज टू डू दिस. एक रात को उसका फोन आया मेरे पास एंड ही वाज क्राइंग, माय फ्रेंड. वी वर बैचमेट्स इन स्कूल एंड ही सेड, गजेंद्र तेरे यहाँ पे मुझे नौकरी मिल जाएगी क्या? आई कांट हैंडल दिस टॉक्सिक एनी मोर. Right. He was literally crying and I felt so bad. I was, and he was one of the brightest guys in our school. And I was thinking अगर इसके साथ ये हो रहा है तो इमेजिन बाकी ब्रांचेस में ऑल ओवर इंडिया में क्या हो रहा होगा. Right. एंड दिस इज व्हाट आई हैव नेवर लाइक्ड इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ पे अगर हमने गलती कर दी जानबूझ, देखो गलती मुझसे भी हो सकती है बिकॉज मार्केट्स आर ऑल अबाउट फ्यूचर. मेरे भी एडवाइस रॉन्ग हो सकती है, बट जानबूझ कर रॉन्ग एडवाइस देना इज क्राइम. Right. बट इंडिया में चलो सब बच जाते हैं, कुछ होता नहीं है. आप कोर्ट कचहरी चक्कर लगाते रहो. बट आई रियलाइज कि नहीं, वी हैव टू डू अ ग्रेट जॉब. हमें पैसे के लिए काम नहीं करना है. लकीली आई कम फ्रॉम अ वेरी डिसेंट बैकग्राउंड फैमिली जहाँ हमारा फैमिली बिजनेस है एंड वी वर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दैट फैमिली बिजनेस. Right. So when I started Etika Wealth, it was never about money. It was always about, can we do great work and how many lives can we impact? So आज 15 साल बाद भी हमारे लिए वो ikigai is that only, कि how much good you can do, with the talent or skill that God has given you. Right, right. Sir, this brings me to one question. So, if people are sitting in bank and somebody is trying to push a policy, what are one or two questions that they can definitely ask to the person to get more clarity कि ये policy उनके लिए है कि नहीं है? देखो सबसे इजीएस्ट हैक मैं आपको बताता हूँ. इफ बैंकर इज ट्राइंग टू सेल यू एनी प्रोडक्ट, जनरली बैंकर विल कम एंड से, सर ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, नया है, ऐसा ले लो. आप सबसे पहला बात पूछो कि अगर इफ दिस इज सो गुड, हैव यू बॉट इट फॉर योरसेल्फ? Right. मुझे तुम वो पॉलिसी कॉपी दिखा दो तुम्हारे नाम की, तुम्हारे फैमिली के नाम पे, तुमने अच्छा पैसा डाला है और है तो मैं ले लूंगा. तो तो अगर वो खुद ने नहीं लिया तो आप समझ सकते हो कि इट्स अ सेल्स पिच फॉर यू, Right. राइट? तो सी नासिम निकोलस तालिब करके बहुत बड़े ऑथर हैं. उन्होंने एक बुक लिखी है ब्लैक स्वॉन और स्किन इन द गेम. तो उन्होंने एक बात कही है कि नेवर आस्क एनीवन फॉर देयर रिकमेंडेशन और सजेशन, जस्ट आस्क देम व्हाट दे हैव और डोंट हैव इन द पोर्टफोलियो. Right. ज्ञान आपको देने वाले बहुत मिल जाएंगे. मेरे जैसे और 50 लोग आते होंगे पॉडकास्ट पे, बहुत कुछ ज्ञान देके जाते होंगे. आपको शशांक खाली पूछना है कि सर सीधी भाषा में बता दो कि आपने आपकी खुद के लिए क्या की है. Right. दूध का दूध, पानी का पानी, सीधा है, राइट? And तो that is a fairly simple question. उसका आंसर yes or no ही होगा, उसमें कोई घुमा नहीं उसमें सकता. कोई ग्रे एरिया है ही नहीं. ये तो मैंने खुद के लिए लिया है, ये नहीं लिया है. अगर नहीं लिया तो फिर मैं आपको क्यों बेच रहा हूँ? Right. हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होती है. एटलीस्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत अच्छी है क्योंकि सेबी के कारण, सेबी ने इतना इसको टाइटली रेगुलेट किया है ना लास्ट 10-15 सालों में. यहाँ अब बहुत कम गुंजाइश हो गई है मिस सेलिंग की. Right. पहले बहुत मिस सेलिंग होती थी 10-15 साल पहले, धीरे धीरे बहुत कम हो गई है. मैं आज ऐसा नहीं कहूँगा कि आज फुल्ली है. हर जगह पे देखो, यू विल ऑलवेज हैव बैड एप्पल्स. देयर विल बी Right. सम पीपल हु विल ऑलवेज ट्राई टू बाईपास रेगुलेशंस, but 99% it's a very clean, and that is why all my family's wealth is in mutual funds, because 20 years I have seen this industry in and out. तो मुझे अंदर की बातें भी पता है. तो जब मैं अंदर की बातें जानता हूँ and I'm putting my entire money which can tell you how much trust I have, right? Right. ठीक है, कभी 1-2 साल में कुछ ना कुछ एपिसोड निकलते हैं कहीं ना कहीं से, कोई पीपल ट्राई टू गेम द रेगुलेशन, बट सेबी कम्स बैक विथ अ वेरी हैवी hand after that.
So yeah, so that gives me a lot of peace of mind, कि my money is working for me. It is, and it is a compounding game. Again, why I like this industry. See, इन्वेस्टर एक बार आपके पास आता है, एक बार ट्रस्ट होने के बाद वो जिंदगी भर आपको पैसा देते रहता है, राइट आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो सामने से चला के आपके पास आता है बार बार। तो राइट यही एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको सेलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, अगर इफ यू गिव रिजल्ट्स तो अपने आप क्लाइंट रिटेन होता जाएगा। क्लाइंट रिटेन होता है, और वो 4 लोगों को और लेके आता है। हाँ राइट राइट, 4 लोगों को और लेके आता है, और फिर वर्ड ऑफ माउथ, इमेजिन जो आपका नेटवर्क बनता है, क्लस्टर बनता है, एंड दीज बिकम योर क्लाइंट्स फॉर लाइफ। राइट जनरली आप अगर 10 साल से किसी एडवाइजर के पास डील कर रहे हो, दैट क्लाइंट बिकम अ काइंड ऑफ ए फैमिली मेंबर, राइट? राइट तो दिस इज अ ब्यूटिफुल गेम, दैट वी लव्ड इट फ्रॉम डे वन। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, हमारे इन्वेस्टर्स का अगर पैसा पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बढ़ता है, तो हमारा बिजनेस भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बढ़ रहा है फिर। राइट राइट तो सर, going back to bank wala piece again, so what is your take on ULIP? Is this something that people should have in their portfolio या एज पे डिपेंड करता है? बिकॉज बैंक्स जनरली फर्स्ट पॉलिसी जो आपको पुश करते हैं वो यूलिप ही रहती है। करेक्ट। इवन मैंने भी दे रखा था तो मैंने भी कुछ दिन पहले सरेंडर की। व्हाट टेक ऑन दैट? See, the only insurance policy you should ever buy is a term plan. ओके And because a lot of, again, your viewers are all salaried people, they might be the breadwinners in the family, जिनके ऊपर उनकी family dependent है, उनके spouse dependent है, children dependent है. The first thing they should buying is a term insurance, uh, and that should be around 15 to 20 times of their annual income. So suppose if our viewers, let's say average income is 10 lakhs, I'm just randomly एक case study बता रहा हूँ, and you are 30 years of age right now, तो आपकी टर्म प्लान जो, और एंड इफ यू हैव डिपेंडेंट्स इन द फैमिली, मतलब यू हैव अ स्पाउस हु इज नॉट वर्किंग, और यू हैव चिल्ड्रन, और यू हैव पेरेंट्स हु आर गेटिंग ओल्डर एंड दे माइट नीड योर सपोर्ट, तो 15 से 20 गुना, यानी अराउंड 2 CR, 10 लाख की आपकी एनुअल इनकम है, 20 टाइम्स 2 CR आपको टर्म प्लान लेना है, एंड यू हैव टू बाय टिल 60 ओनली। लॉट ऑफ दीज इंश्योरेंस कंपनीज ट्राई टू सेल योर 100 ईयर प्लान, 80 ईयर प्लान, और आप जब उनको 60 का बोलोगे ना, तो वो बोलेंगे सर आप 60 में अगर उसके बाद भी जिंदा रह गए तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हम्म तो आप 80 का लो, आप 90 का लो, आप 100 का लो, तो आपको गारंटेड ये अमाउंट मिलेगा। हम्म वॉट दे डोंट टेल यू इज कि आप 100 वाला एज वाला प्लान लोगे ना, तो आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा डबल हो जाएगा। राइट राइट, और बैंक और वो जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, उसको तो प्रीमियम से मतलब है, जितना ज्यादा प्रीमियम आएगा उतना उनका प्रॉफिट है। राइट और दूसरी बात, क्या गारंटी कि आप 100 तक कंटिन्यू करने वाले हो? एक प्रीमियम आपने मिस किया तो पॉलिसी लैप्स हो गई, जितना भी राइट प्रीमियम दिया वो सब उनका प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट। राइट तो आई ऑलवेज टेल पीपल कि 60 तक का ही आपको लेना चाहिए, बिकॉज दैट इज योर वर्किंग लाइफ। उसके बाद राइट तो आप वैसे भी रिटायर्ड हो गए, राइट और उसके बाद आपके बच्चे भी बड़े हो गए, नोबडी इज डिपेंडेंट ऑन यू नाउ, राइट राइट? एंड सेकेंडली, अगर आप 60 तक रह गए, होपफुली योर कंपाउंडिंग वुड हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ वेल्थ फॉर यू बाय देन। यू ऑलरेडी हैव अ कॉर्पस। यू ऑलरेडी हैव अ कॉर्पस, देन यू डोंट नीड दैट 2 crores एक्स्ट्रा। राइट टर्म प्लान चाहिए कि कल सुबह कुछ हो जाए तो क्या होगा, हम्म राइट? मंडे मॉर्निंग इफ आई डोंट वेक अप सडनली, एंड वी सी लॉट ऑफ दीज। अभी हमने हम्म एक हफ्ता पहले देखा एपिगेमिया करके, वो जो यू नो हाँ रोहन फ्लेवर्ड योगर्ट, रोहन मिर्चंदानी, मीर चंदानी। राइट 42-year-old young bright guy passed away, राइट? राइट स्ट्रोक, हार्ट अटैक। तो यही सबसे बड़ी रिस्क है कि आज आपको ही मुझे कुछ हो गया हम्म और हमारी फैमिली डिपेंडेंट है, तो क्या होगा? राइट 20 साल अगर हम जिंदा रह गए तो फिर तब तक हम वेल्थ बना लेंगे होपफुली। तो सबसे हाँ पहले सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, चाहे बैंक कितना भी आपको पुश करे यूलिप और कुछ के लिए, आप मना कर दो, बोलो कि मुझे टर्म प्लान ही लेना है। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, आप किसी एडवाइजर के थ्रू भी कर सकते हो। प्रेफरेबली आई वुड ऑलवेज से यू शुड ऑलवेज बाय फ्रॉम अ ट्रस्टेड एडवाइजर, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं। द रीजन बीइंग, ऑनलाइन वगैरह में प्रॉब्लम क्या होती है, आप खुद से बाय करते हो, यू माइट बी वेरी इंटेलिजेंट, बट ये तो आपको नहीं मिलेगा ना पैसा, आपके नॉमिनी को मिलेगा, राइट? उनको क्लेम करने के लिए जाना पड़ेगा। यू विल नॉट बी अराउंड दैट टाइम टू गो थ्रू द पेपर वर्क। तो राइट तो इफ यू आर बॉट थ्रू अ ट्रस्टेड एडवाइजर जो इसी लाइन में काम करते हैं, हु हैज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, देन आपकी फैमिली को, दे डोंट हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, एवरीथिंग गेट्स सेटल्ड इजीली। तो सबसे पहला टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए शशांक। सेकंड, health insurance. Why I say health insurance, and
हेल्थ इंश्योरेंस से पहले मैं एक चीज, ठीक है, थर्ड में आपको बताऊंगा क्या है. सेकंड है हेल्थ इंश्योरेंस. लॉट ऑफ, अगेन आवर व्यूअर्स माइट बी वर्किंग इन बिग एमएनसीज, राइट, आईटी ये फील्ड में हो, इंश्योरेंस करेक्ट. पहले से। तो वो हाँ, कंपनी का इंश्योरेंस होता होगा. तो हम लोग बोलते हैं, अरे नहीं, मेरा तो कंपनी का इंश्योरेंस है, मुझे क्यों लेना है. अगेन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू माइट चेंज कंपनीज. Companies insurance policies will have a lot of clauses which you would have never read. right, They might cover your parents or may not cover your parents or spouse. तो आप एक खुद का स्टैंड बाई हेल्थ इंश्योरेंस कवर लो. दैट मे नॉट बी अ बिगर अमाउंट, दैट कैन बी जस्ट 10 lakhs रुपीज. और बिकॉज यू आर यंग तो आप उसमें ज्यादा प्रीमियम पे नहीं कर रहे हो, right, राइट. वॉट इफ यू चेंज जॉब्स, 3 महीना आपका जॉब नहीं रहा और नया इंश्योरेंस आया नहीं, एंड इफ समथिंग वर टू हैपन टू यू, तो उस वक्त कहाँ से लाओगे. सो एक खुद का इंश्योरेंस रखते हो ना, तो उसमें क्या होता है, यू बिल्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑल्सो इन दैट इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म. तो फिर आपको कभी उसमें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी. सो चाहे कंपनी का भी हेल्थ इंश्योरेंस हो, आपका और आपका स्पाउस का, आई वुड स्टिल सजेस्ट फॉर योर ओन फैमिली, इमीडिएट फैमिली, you should have your own health insurance, this thing. And another hack I would like to give you, many of these companies plans that you have may cover your parents also or your in-laws also, yes, they cover. राइट. तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, हमारे पेरेंट्स की इंडिविजुअल पॉलिसी अब बन नहीं सकती बिकॉज दे आर अबव 60 Right, or they already have some illnesses pre-existing and the premiums will be very high. I always tell them, use your company's policy to cover your parents' healthcare hospitalization requirement from there. right, Okay, because that comes under group policy, hopefully easy हो जाना चाहिए, right, right. And because you are young, आपको अब जनरली जरूरत नहीं पड़ेगी. तो वो जो पूरा का पूरा कवरेज है वो आपके पेरेंट्स के एवरी ईयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए काम आ जाएगा. और आपको right, कभी कुछ हुआ तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर ओन पॉलिसी. right. तो उसका तो प्रीमियम आप दे ही रहे हो. सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड वे टू मैनेज दीज टू थिंग्स. थर्ड, आई वुड स्ट्रांगली recommend people to have a personal accidental cover, Okay, because again in Bombay, Delhi, metro cities, I've seen people traveling for 2 hours in their cars right, daily. They're traveling multi cities, right. Accidents, we are seeing huge number of cases. What right, if tomorrow you meet with an accident and you don't die and you are now permanently disabled, right, right? Then actually it is worse than death, because कम से कम डेथ होने से फैमिली को टर्म प्लान का पैसा तो मिल जाता है. right, बट यहाँ पे हम डेथ भी नहीं हुई एंड नाउ वी इन अ वे बिकम बर्डन ऑन द फैमिली, right, राइट. तो फिर उस वक्त अगर इफ यू गेट अ 1 crore lump sum amount with based on your disability, I think that amount can come as a big rescue and support to the family in those difficult times. right, So, and 1 crore का personal accidental covers is very cheap. It's hardly 10-12 thousand rupees per annum premium. 15,000 रुपए, मतलब उसमें परमानेंट डिसेबिलिटी, टेम्परेरी डिसेबिलिटी, एवरीथिंग इज कवर्ड. ये हो गया. एंड फाइनली आई वुड अगेन recommend one more policy which is critical illness cover. okay, That again you can take for 50 lakhs. उसमें क्या होता है शशांक, you are covered for 25 critical illnesses like right, bypass surgery, cancer, kidney failure, liver failure. So after 20 years or 10 years, if you're diagnosed with any of these illnesses, okay, then the company pays you lump sum 25 lakh rupees, whether you're hospitalized or not, or at the time of diagnosis. Now I'll tell you what is the benefit of this. If you have already health insurance cover, your health insurance cover will cover all your hospitalization cost. right, This 25 lakh or 50 lakh cover will cover other costs, which means आप जॉब से 2 महीना छुट्टी लिए हो and your income is not coming now, or right, you are a business owner and your business is not working now because you are hospitalized. That 25 lakh or 50 lakh will help you for that part, right, which no hospitalization cover would include, because वो तो खाली actual expenses आपको reimburse करेंगे. right, So term plan, health insurance, personal accidental cover जिसका बहुत traveling का काम होता है by road particularly. I see lot of executives who travel Mumbai to Pune on a very regular basis on the highway 3 hours. Same right, thing North India में, from Noida, from Gurgaon to Chandigarh or wherever, I don't know, I mean 2-3 hour drive. Accidents are very common. Foggy season, foggy मतलब winters में foggy होता है, and we saw what happened with Rishabh Pant also, right? You remember? very true. Very true. तो ये किसी के साथ भी हो सकता है. Hmm. तो फिर ये चार अगर आप ले लेते हो ना, देन यू आर कंप्लीटली एट पीस ऑफ माइंड. उसके Hmm. बाद यू आर नेवर वरीड अबाउट एनी रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क
arising out of these events. अंडरस्टूड सर. आई थिंक बेसिक दीज आर द फाउंडेशन जिसके टॉप पे फिर आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट्स को Yes, अगर यही मिसिंग है तो फिर आप कितनी भी एसआईपी कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं आपको वो ब्रेक करना पड़ेगा फिर. हाँ, आई रेड समवेयर कि इंडिया में यू आर जस्ट अ डिजीज और एक्सीडेंट अवे फ्रॉम बिकमिंग ब्रोक, क्योंकि अगर कुछ होता है Yes, तो अगर आपकी पूरी सेविंग्स हिट हो जाती है. इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग विद समवन, उनका अभी एक्सीडेंट हुआ था, तो ऑल ऑफ देयर सेविंग ऑफ क्लोज टू 30-35 लाख, इट वेंट इन हॉस्पिटलाइजेशन एंड डॉक्टर फी एवरीथिंग. एग्जैक्टली. और हमने जो मेडिकल एक्सपेंसेस की बात की, इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं, राइट? और आपको पता नहीं है 10 दिन, 15 दिन, एक महीना, कितना दिन रहना पड़ेगा. लाइफ लॉन्ग मेडिकल सपोर्ट चाहिएगा आपको. तो आपकी जो सेविंग है चली जाएगी, और बाद में आपको उस इवेंट के बाद में आपको कोई नया कवर भी नहीं मिलने वाला है. राइट. यू बिकम अ वेरी हाई रिस्क कस्टमर फॉर द कंपनी, राइट? तो जब आज सब कुछ अच्छा चल रहा है तो लेके उसको लॉक कर लो. राइट. राइट. नहीं सर, वेरी राइटली सर, आपने फाउंडेशन बता दी. अब इस फाउंडेशन के टॉप पे जो इन्वेस्टमेंट बिल्ड करते हैं, उसमें माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सम ऑफ द की फैक्टर्स दैट पीपल शुड कीप इन माइंड व्हाइल चूजिंग अ म्यूचुअल फंड, बिकॉज आई सी पीपल ओनली लुक एट पास्ट रिटर्न्स, एक फिल्टर लगा देते हैं, उसके बेसिस पे तुरंत परचेज कर लेते हैं. हाँ, ये इसको मैं इमेजिनरी इन्वेस्टिंग पिरामिड बोलता हूँ कि हम लोग फंड्स चूज करते हैं. हम लोग दिन भर ये दिमाग लगा कौन से फंड्स में जाएं, मार्केट टाइमिंग, लमसम डालूं कि एसआईपी करूं, प्रेडिक्शन करते रहते हैं, विच इज वेरी इमेजिनरी. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई आस्क पीपल कि व्हाई आर यू पुटिंग मनी, एंड इवन बिफोर म्यूचुअल फंड, व्हाई आर यू सेविंग दिस मनी, व्हाट इज द पर्पज, यू नीड टू नो व्हाट इज योर गोल. राइट. राइट? ये पैसा हम और आप साथ में तो लेके जाने वाले नहीं है. हम आज मेहनत क्यों करें? बिकॉज वी हैव अ फैमिली टू प्रोवाइड फॉर. हमारे गोल्स है लाइफ में. सी, देर आर 3 बिगेस्ट गोल्स इन एवरीवन्स लाइफ, शशांक. टू बाय अ ड्रीम हाउस, राइट. करेक्ट? ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी कांट थिंक ऑफ कमीलियाज ऑफ द वर्ल्ड, राइट? बट हाँ, अगर आप कमीलिया के बारे में सोचते हो ना, तो वो भी हो सकता है. हाँ. इट इज पॉसिबल. आप ऐसा मत सोचो कि नहीं, ये तो मेरे नसीब में ही नहीं है. अगर आप ऐसे सोचोगे ना, तो कभी आपका नसीब में आएगा भी नहीं. तो मैं क्या मैं सर, हाँ एसआईपी के थ्रू भी हो सकता है क्या पॉसिबल परचेजिंग अ? सर, जब मैं रोल्स रॉयस भी अ, गाड़ी, जो कि वन ऑफ द लग्जरियस कार इन द वर्ल्ड है, मैं अगर उसको एसआईपी सोच के लाने की सोच सकता हूँ, तो फिर दुनिया में हर चीज आ सकती है. आपको राइट. खाली विश्वास होना जरूरी है, बिलीफ होना जरूरी है. राइट. तो कमीलिया भी आ सकते हैं. यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू वर्क फॉर इट. यू जस्ट कांट विश फॉर इट, यू हैव टू वर्क फॉर इट. राइट. तो फर्स्ट आपके लाइफ में गोल्स बनाओ कि व्हाट are the goals in your life. So dream house is a big goal for most salaried people, right? राइट. Then the other big goal for them is very good education for the children. राइट. Again, when I'm saying very good education, then most of the parents are looking for international education. राइट. And the third is a very comfortable retirement. राइट. ये 3 गोल्स है ना, आपके सारे व्यूअर्स के मोस्टली कॉमन रहेंगे. ठीक है, फिर राइट. चौथे गोल्स हो सकते हैं लग्जरी कार, हम्म. एनुअल ट्रैवल वेकेशंस, लग्जरी वेकेशंस, वो भी हो सकते हैं. बट 3 ये नॉन नेगोशिएबल हो गए. आई थिंक आपने उसको अच्छे से पकड़ के दिया, जो हम लोग एमबी में पढ़ते थे, नीड, वांट्स एंड डिजायर, तो ये. एग्जैक्टली, राइट. एब्सोल्युटली. तो आपको पहले नीड वाला बकेट खत्म करना है. तो तो उसके लिए आप पहले गोल्स को पेपर पे लिखो, आपकी स्पाउस के साथ डिस्कस करो, फैमिली के साथ डिस्कस करो कि हमें हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, उसके लिए क्या कॉस्ट लगेगा. फिर बहुत सारे कैलकुलेटर्स ऑनलाइन आते हैं जिसपे आप ये सारे फिगर्स डाल सकते हो कि अगर मुझे 10 साल बाद रिटायरमेंट लेना है, फाइनेंशियल फ्रीडम, तो मेरे पास कितना कॉर्पस होना चाहिए 10 साल बाद रिटायरमेंट के लिए. देखो, बहुत सारे पॉडकास्ट देख के ना लोग बोलते हैं अरे 1 करोड़ मेरे पास होने से काफी है, 5 करोड़, जस्ट बिग नंबर्स. अरे 10 करोड़, फाउंड नंबर मेरा अचीव हो जाएगा हाँ एक बार. 10 करोड़ हो गया ना तो मेरी लाइफ में सब पूरे हो जाएंगे. मुझे 10 साल बाद 10 करोड़ करना है बॉस. वेदर 10 करोड़ इज रेलेवेंट फॉर यू और नॉट, वर्क विथ योर नंबर्स. हो राइट. सकता है कि आपको 15-20 करोड़ चाहिए, और हो सकता है आपके 5 करोड़ में भी काम हो जाए, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर. राइट. तो डोंट गो बाय जस्ट लार्ज नंबर्स की नहीं 10 करोड़ हो गया तो लाइफ विल बी वेरी गुड. ओके, तो और 10 करोड़ आज रेलेवेंट हो सकते हैं, लेकिन 10 साल बाद शायद 10 करोड़ की वैल्यू ना हो. तो आपको हाँ. इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करना पड़ेगा ना. राइट. तो तो देर आर दीज ऑनलाइन कैलकुलेटर्स जहाँ पे आप चाइल्ड एडुकेशन के गोल्स का कैलकुलेशन भी कर सकते हो, रिटायरमेंट का कर सकते हो, हाउस परचेज का कर सकते हो, सारे कर सकते हो. वो करने से दैट कैलकुलेटर विल थ्रो यू सम नंबर्स की आपको लमसम कितना करना है अगर आज आपके पास है, राइट. आपको एसआईपी कितने की करनी है अगर आपके पास लमसम नहीं है,
एंड आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग आर सैलरीड पीपल, तो उनके लिए एसआईपी वुड मेक मोर सेंस, राइट। राइट? तो वो कर सकते हैं। एंड देन ठीक है, आपने तीनों चारों गोल आपने किए, पता चला कि आपको 2 लाख रुपए की एसआईपी चाहिए, और आपको पता चला कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, हम्म। तो मैं 2 लाख कहाँ से लाऊंगा? इसका राइट। मतलब ये है कि मैं सारे गोल्स को अबंडन कर दूं? द आंसर इज नो। अगर आज आपके पास 1 लाख है और आप 50,000 की एसआईपी चालू कर सकते हो, आपको मालूम है कि 2 लाख आपको करने हैं, गैप 1.5 लाख का है, इट डजेंट मीन यू स्टॉप एंड यू डू नथिंग। इट मीन्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाए, आप इसको टॉप अप करते जाओ, बढ़ाते जाओ, स्टेप अप करते जाओ। आपके पास बोनस आता है ईयर एंड में, तो 50% बोनस को आप इसमें लमसम भी डाल दो, राइट। राइट? तो अगर आप ऐसा करोगे तो देन सम डे विल कम व्हेन यू विल बी एबल टू अचीव ऑल दीज गोल्स। राइट। तो वो प्लान, यू हैव टू स्टिक टू द प्लान। 90% लोग क्या करते हैं, प्लान बनाते ही नहीं है, पहले तो बात है। 10% लोग जो प्लान बनाते हैं, बना लेते हैं, लेकिन दे डोंट स्टिक टू द प्लान, राइट। राइट। एंड दैट इज व्हाई वी आर देन इन्वॉल्व इन दैट रैट रेस। एंड देखो, बहुत लोग घर, मैंने देखा है, जॉब करते ही, शुरू करते ही, शादी होते ही ले लेते हैं। हम्म। 90% of the cases I've seen people buying a house in the first 3-4 years of work. राइट। 90% of the people I've seen buying a very good car as soon as they get a good job, this thing. And you know what, Shashank, I've observed a lot of these people are paying three kinds of loans. They are paying the education loan first, राइट। because many of them may not have had their family support when they were doing education, and उन्होंने एमबीए के लिए, और आजकल तो हर एमबीए कॉलेज का कॉस्ट भी 15, 20, 25 लाख रुपए हो गए हैं। इजली सर 25 तो बेयर मिनिमम है। लाइक्स ऑफ आईएसबी 40 लाख पे है 40 lakhs पे है, तो राइट, तो बहुत फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती है, तो आप लोन लेते हो, तो यू डे वन बिफोर गेटिंग अ जॉब यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग विद अ लोन। राइट। इनकम नहीं है बट हम लोन से शुरुआत कर रहे हैं। सेकेंडली, जैसे ही जॉब आई तो गाड़ी भी चाहिए, तो हम और 20-25 लाख की गाड़ी खरीद के उसका ईएमआई भी चालू कर देते हैं। राइट। एंड थर्ड, जैसे ही शादी हुई, तो फिर अब घर भी लेना है, तो उसकी भी हम ईएमआई चालू कर देते हैं। तो आई हैव सीन 90% ऑफ द पीपल, दे आर दे आर लिविंग हैंड टू माउथ, बिकॉज सारा का सारा पैसा ईएमआई में चला जाता है ऑलमोस्ट, राइट। सेविंग बचती नहीं है। एंड एंड उसमें जो स्ट्रेस आती है, आई कैन टेल यू इट्स सच अ स्ट्रेसफुल थिंग, बिकॉज देन यू वांट टू चेंज इवन योर जॉब ऑल्सो, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज, बिकॉज आपको डर है कि नई कंपनी में, एटलीस्ट इस कंपनी में मुझे पता तो है कि यहाँ फायरिंग नहीं है, ये यहाँ मैं आराम से कर सकता हूँ, आई नो माई बॉसेस, आई डोंट नो नई कंपनी में क्या होगा। एंड दैट इज वाई पीपल स्टिक टू the job even if they're not enjoying it, even if they're not liking it, राइट। even if there is a toxic culture, because they have EMIs to pay, राइट। right? तो वो अपनी बॉसेस की सुनेंगे, जो भी कंपनी बोलेगी करेंगे, चाहे वो बिल्कुल भी उनकी इच्छा ना हो। राइट। तो ये समाउ मुझे कभी समझ में नहीं आया, मतलब देन यू आर नॉट फ्रीडम, इसी वी कॉल आवरसेल्व्स फ्रीडम, हम लोग बोलते हैं हम लोग सब फ्री वर्ल्ड में रह रहे हैं, बट आर यू रियली लिविंग इन अ फ्री वर्ल्ड? राइट। जब आपके ऊपर आपको कोई चाबुक लगा के आपको बोला आपको ऐसे काम करना है, मंडे मॉर्निंग में आपको सूट पहन के आना है, आपको ये करना है, आपको आपकी एनिवर्सरी के दिन आपको बैंगलोर जाना है, ट्रैवल करना है, और आप मना नहीं कर राइट। पाते हो, देन यू आर नॉट हैविंग फ्रीडम। राइट। तो फिर चाहे आप 2 लाख रुपए महीने कमाओ, चाहे आप 5 लाख रुपए महीने कमाओ, इट डजेंट रियली हेल्प। तो ठीक सर है। यू बिलीव दिस फिलॉसफी क्या, क्योंकि जो आपने बताया ये ऐसी कैटेगरी ऑफ पीपल है जो ये बिलीव करते हैं कि यार अभी अगर नहीं किया तो कब करेंगे, बाद में 50 के हो जाएंगे, 55 के हो जाएंगे, तब थोड़ी करेंगे, तो अभी राइट टाइम है, कर लो। और उस पे आई सीन पीपल टेकिंग फैंसी कार्स, गोइंग फॉर होम हाउसेस से विच आर कॉस्टिंग 4-5 CR, जिसपे आप पूरा ही जॉब पे डिपेंडेंट हो। द डे योर जॉब इज गॉन, यू आर बेसिकली देन लोन कलेक्टिंग एजेंसीज जो वो आपके पीछे ही पड़ने वाली है। वो भी है, और प्लस मैं ये बोलता हूँ, कौन सा घर आपका है, कौन सा गाड़ी आपकी है, जब तक आपने पूरी किस्तें नहीं दी है, पेपर्स आपके पास है ही नहीं गाड़ी के, घर राइट। आपके पास है ही नहीं, तो आप कैसे बोल रहे हो कि मेरा घर है, मेरी गाड़ी? आप खाली रह रहे हो और उसकी ईएमआई भर रहे हो, तो वो तो आप रेंट पे भी भर सकते हो, राइट। राइट? तो देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको कुछ भी नहीं ऐसा करना चाहिए। आज आप 30 साल के हो, आपको हार्ली डेविडसन चलाने का मन है, तो ठीक है, हार्ली डेविडसन का भी प्लान करो कि 3 साल में मैं हार्ली डेविडसन लेके आनी है, उसकी अगर 10 लाख रुपए कॉस्ट है, तो मैं इतनी की एसआईपी करता हूँ, उसके मैं हार्ली डेविडसन लेके आता हूँ। राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 60 तक कुछ मत करो, राइट? बट आप सारे गोल्स को ही आज बना लो कि नहीं, मुझे घर भी आज खरीदना है, मुझे गाड़ी भी 60 lakhs की लेनी है, मुझे लग्जरी हॉलीडेज में भी जाना है इसी साल, और सब कुछ करना है, और हमारे पास पैसे ही नहीं है उसके लिए, तो फिर तो राइट। वो ख्याली पुलाव वाली बात हो गई। राइट। राइट। तो सी, हर आदमी के पास क्या होता है, लिमिटेड बजट होता है। हमारी वांट्स हमेशा
बहुत ज्यादा होती है। राइट। तो आपको प्रायोरिटाइज करना जरूरी है कि क्या चीज मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है, क्या चीज को मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ। राइट। तो मुझे भी आज बहुत सारी चीजें लाइफ में करनी थी, लेकिन मैंने प्रायोरिटाइज की कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। राइट। तो जो सबसे पहला मैं देखो, और इन सब में भी आप अगर देखोगे ना, जो हमारा बिगेस्ट एक्सपेंस जाता है वो हाउसिंग में जाता है। हाँ। घर में, घर की ईएमआई सबसे बड़ी होती है। हाँ। राइट। तो मैं जनरली ये मानता हूं कि इफ यू आर 20, 25, 30, 35, यू शुड नॉट बाय हाउस। ओके। You should not buy a house in the first 15 to 20 years of your work life. You should always stay on rent. The reason I'll tell you, because in the first 15, 20 years, you will be changing the maximum amount of jobs. राइट। लोकेशन एग्नोस्टिक रहना पड़ता है आपको। रहना पड़ता है। आप गुड़गांव आज हो, कल नोएडा हो, कल दिल्ली हो गए, फिर बॉम्बे आ गए, बैंगलोर चले गए, आईटी फील्ड में हो, तो आप, द होल वर्ल्ड इज योर मार्केट, राइट? राइट। तो डोंट लॉक योर सेल्फ इन टू अ हाउस एंड एन हाउसिंग ईएमआई। राइट। स्टे इन द बेस्ट पॉसिबल रेंटल फ्लैट क्लोजर टू योर ऑफिस। राइट। अगर आपका घर नोएडा में है और आप गुड़गांव में काम जा रहे हो ना, तो सर आपकी लाइफ गाड़ी की ट्रैवलिंग में चली जाएगी। राइट। तो आप नोएडा में शिफ्ट हो जाओ, नोएडा में है तो गुड़गांव शिफ्ट हो जाओ, एकदम क्लोजर टू योर वर्क प्लेस। तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो आप एनवायरमेंट को तो सेव कर ही रहे हो, ये तो आप ऑफिस में हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो आपकी होपफुली इंक्रीमेंट अच्छी होगी। या फिर राइट। अगर आप घर पे आ रहे हो तो फैमिली के साथ टाइम दे रहे हो, तो कम से कम बीवी से झगड़ना नहीं होगा। बच्चों के साथ राइट। टाइम दे पा रहे हो, वो भी बहुत क्रिटिकल है। राइट। तो बैलेंस करो आप। 15 साल उसकी घर खरीदने की तैयारी करो, एज इन एसआईपी करके घर का एक गोल बनाओ कि मुझे ड्रीम फ्लैट खरीदना है, ड्रीम हाउस खरीदना है, उसकी एसआईपी स्टार्ट करो। लेट कंपाउंडिंग वर्क फॉर यू फॉर द फर्स्ट 15 years alive, and I'll tell you, the moment you become 45, then you become quite mature in your life. You have seen the world, you have राइट। seen everything. Then you can decide which city is right for me, because hopefully by that time you would have lived in 3, 4 cities, and then you can decide this is a city where I want to build my home or buy an राइट। apartment. तब तक आपके पास पैसे भी हो गए एंड आप में मेच्योरिटी भी आ गई। वरना आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल एट 25 दिल बाई ए 4 BHK हाउस, थिंकिंग कि हमें 25 साल रहना है, तो आज मैं 1 BHK 2 BHK क्यों खरीदूं, सीधा 4 BHK खरीद लेता हूँ। बार बार कौन घर चेंज करेगा? इमेजिन द काइंड ऑफ ईएमआई बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर पेइंग। राइट। और राइट। एक की भी नौकरी चली गई ना, तो सारा स्ट्रेस हो जाता है, घर में उदासी आ जाती है। राइट। तो सर वही राइट की साइड आई हैव सीन कि जब लेऑफ्स चल रहे थे तो पीपल हु हैव बुक्ड बीएमडब्ल्यू एंड हाउसेस ऑन लोन, कई लोग को उसको गिव अवे करना पड़ा, मतलब बेसिकली डील अपनी वहां पे क्लोज करनी पड़ी, क्योंकि एक की जॉब गई फिर तो आप पूरा, आपके लिए कुछ बचा ही नहीं ना, यू कांट अफोर्ड इट वो एनीमोर। भी है। फिर मालूम है प्रॉब्लम क्या होती है? स्ट्रेस तो होता ही है, फिर घर में हस्बैंड वाइफ में इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। अरे तुम इतना खर्चा क्यों कर रही हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग ईच अदर। राइट। बच्चों पे भी असर आता है। एंड मेनी, यू नो, वी हैव बीन टोल्ड, आई हैव सीन समवेयर, financial issues are the second biggest reason for divorces in the world. The number one reason is of course infidelity, मतलब trust issues वैसे, but second biggest reason is finances. कि आजकल तो ये हाल है कि हस्बैंड वाइफ में, ये तुम्हारा पैसा है, ये मेरा पैसा है, तुम, हम लोग 50-50 कंट्रीब्यूट करेंगे, बाकी यू डोंट आस्क मी वेयर आई एम स्पेंडिंग। राइट। तो आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज जब तक अगर पैसों को लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इफ यू आर नॉट ऑन द सेम पेज, वी आर गोइंग टू हैव दिस लाइफ लॉन्ग इश्यूज। राइट। तो एंड ये सब जब हमने लोन ले लिए और स्ट्रेस ले लिया ना, तो फिर वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं ये इश्यूज बन जाते हैं। गॉट इट, गॉट तो इट। कंप्लीटली गेट इट। सो फर्स्ट थिंग तो व्हाट माय टेक अवे इज कि अगर आप 25 से 35 के बीच हो तो पहले तो होम लोन के लिए आपको नहीं जाना है। नहीं जाना। फर्स्ट फाउंडेशन जो आपने चार चीजें बताई उसके ऊपर फोकस करना है। करेक्ट। देन सेकंड थिंग इज स्टार्टिंग विद द इन्वेस्टमेंट जर्नी। सर पीपल टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स, बट म्यूचुअल फंड्स में भी आप कैसे डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि वहां पे भी थोड़ा रिस्क आपका कवर्ड है? तो मैं देखो, बहुत सारे इन्वेस्टर्स DIY होंगे, डू इट योरसेल्फ, राइट। जो किसी से एडवाइस नहीं लेते होंगे, मे बी बिकॉज दे आर बिजी, यू नो। तो उनके लिए मेरा सिंपल एडवाइस है, आप दो तरह के फंड ले सकते हो। आपको अगर सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है और आपको कोई एडवाइस नहीं चाहिए, तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होते हैं, हम्म। आप उसमें पैसा डाल दो। योर मनी इज इनटू बेस्ट 50 कंपनीज, लार्जेस्ट 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। राइट। बट उसमें आपको लार्ज कैप ही मिलेगा खाली, ठीक है ना, मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं मिलेगा। इफ यू वांट टू ओन अ लार्जर बास्केट, देन यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक निफ्टी 500 इंडेक्स फंड।
Okay. तो इसमें इंडिया की 500 बिगेस्ट कंपनीज आपको मिलती है, उसमें लार्ज कैप भी आ जाता है, मिड कैप भी आ जाता है, स्मॉल कैप भी आ जाता है। दिस इज वेरी सिमिलर टू S&P 500 जो यूएस में है, विच इज हाईली ट्रैक। तो इंडिया में 500 कंपनीज में ये तीनों मिल जाता है। तो चाहे तो आप निफ्टी 50 ले लो, इफ यू आर कंजर्वेटिव, इफ यू आर मोर एग्रेसिव यू कैन बाय निफ्टी 500। Right. अगर आप इंडेक्स फंड लेते हो ना, तो उसके अलावा आपको और कोई फंड लेने की जरूरत ही नहीं है। Okay. तो फिर आप पूरी जिंदगी भर सारा पैसा आप उसमें डाल सकते हो। उसमें आपको ना मार्केट टाइमिंग करना है, जब जब आपकी SIP चल रही चलने दो, लमसम आया उसी में टॉपअप कर दिया, और जब जब आपकी गोल के लिए पैसे चाहिए आप वहां से निकाल लो। तो एक ही फंड है, एक ही बास्केट है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसमें डालते जाओ। और वहां से उसमें फिर आपको क्या है, जो मार्केट ने रिटर्न दिया है वही आपको मिलेगा। अगर मार्केट ने 14% रिटर्न दिया तो आपको भी लगभग उतना आएगा, मार्केट ने 12 दिया तो आपको भी आएगा। तो आपको इन एंड आउट फंड से करने की जरूरत नहीं है। इट इज अ लो कॉस्ट दिस थिंग। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अल्फा कि मुझे मार्केट से ज्यादा कमाना है, Right. which I think is not very easy to do for 95% of the investors. Hmm. 95% of the investors fail to beat the market, Right. right? Forget they उनके म्यूचुअल फंड्स आउट परफॉर्म नहीं करते हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने फंड्स को भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं इन द फंड्स दे इन्वेस्टिंग, विच Right. मीन्स अगर वो फंड ने 15% रिटर्न दिया तो उनका खुद का रिटर्न 13%, 12%, 10% आता, बिकॉज दे केम इन द फंड एट द रॉन्ग टाइम, दे एग्जिट एट द रॉन्ग टाइम। Right. ये प्रॉब्लम आती है एक्टिव फंड्स में, when you are Hmm. trying and choose active funds in large cap, mid cap, small cap. Now, what most people do, as you rightly said, they just go on to any website, Google Money Control, and वो लोग क्या टाइप मारते हैं, टाइप करते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड इन 2024, Right. राइट, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड इन द लास्ट 3 years। तो जो फंड ने ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे चुका है, जिसपे आपको रिटर्न कोई फायदा नहीं हुआ है, आप तो आज पैसा डालने वाले हो, what Right. is the point of putting your money in the fund that has already performed, and Right. what is the guarantee that this fund will continue to perform? Right. तो most people make classic mistake by picking a fund simply choosing on past performance। एंड मैं इन्वेस्टर्स की भी गलती नहीं मानूंगा, बहुत सारे जो एप्स हैं ये ऑनलाइन वाले, ये आपको ऐप में दिखाते ही है दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फंड, दिस Hmm. इज अ फंड बॉट बाय मोस्ट इन्वेस्टर्स। और Hmm. रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा ही गलत डिसीजन लेती है, बिकॉज दे हैव नॉट लर्नड इन द राइट वे, राइट, दे आर गोइंग व्हाट इज राइट नाउ फैशनेबल, जो चीज अभी चली है। तो द बेस्ट वे टू लुक एट परफॉर्मेंस इज नॉट पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स की लास्ट 3 साल में किस फंड ने बेस्ट किया है। वॉट यू शुड बी लुकिंग समथिंग कॉल्ड रोलिंग रिटर्न्स, शशांक। Rolling. Okay, sir. और ये बहुत सिंपल चीज है रोलिंग रिटर्न्स। सपोज एक फंड स्टार्ट हुआ था जनवरी 1 2010 को, Hmm. और आपको इसका परफॉर्मेंस ट्रैक करना है कि इसका 5 साल का परफॉर्मेंस क्या है। तो लोग क्या देखते हैं, लोग 2010 से लेके अभी तक का परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, लोग देखेंगे आज से लेके लास्ट 5 साल में इसका परफॉर्मेंस क्या रहा है, राइट, लास्ट 5 years। Right. हो सकता है लास्ट 5 years परफॉर्मेंस इज वेरी गुड एंड पीपल विल बाई इट थिंकिंग इट विल बी रिपीटेड। व्हाट आई वांट टू से इज गो फॉर रोलिंग रिटर्न्स, यानी जनवरी 1 2010 से लेके जनवरी 1 2015 तक उसका क्या रिटर्न था, जनवरी 2 2010 से लेके जनवरी 2 2015 तक का पीरियड का क्या रिटर्न था, हर दिन का 5 साल का रोलिंग रिटर्न। Right. तो आपको लास्ट 10 years में कम से कम ऐसे 500,000 पॉइंट्स मिलेंगे उसके, उन सब का आप एवरेज करो, तब वो 5 year रोलिंग रिटर्न्स आपको सही मिलता है कि एनी डे आपने अगर आपकी SIP चालू की थी और 5 साल किया होता तो आपका रोलिंग रिटर्न क्या था। और आजकल बहुत सारी वेबसाइट में ये रोलिंग रिटर्न्स आती है, तो आप 5 year रोलिंग रिटर्न, 7 year रोलिंग रिटर्न देख के फिर पैसा डालो कि इस फंड ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है कि नहीं किया, Right. Right. राइट। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक फंड था जो 3 साल पहले वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड था, एक मिड कैप फंड की मैं बात कर रहा हूं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट 3 साल पहले वो वर्स्ट परफॉर्मिंग था। आज के दिन में वो बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड है। तो उसका 1 साल का रिटर्न, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का सारा रिटर्न अच्छा है। मालूम है क्यों? क्योंकि लास्ट 1 साल में उसने बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया, तो जो एवरेज होती है बाकी सब सालों की वो सब भी वो ऊपर आ गई इसकी है। हो गई। हाँ, इसकी हो गई। बट यही परफॉर्मेंस आप 3 साल पहले देखते तो आप उस फंड को हाथ भी नहीं लगाते थे। Right. तो इसीलिए डोंट गो बाय द रिसेंट परफॉर्मेंस, गो बाय द लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड की उस फंड ने कैसा हर मार्केट में कैसा रिटर्न दिया है, एंड देन यू शुड बाय दैट। सो दैट इज वन। द सेकेंड फैक्टर यू शुड लुक व्हेन यू ची, and more important than the fund within that category is which category is relevant for you। म्यूचुअल फंड में भी 15 कैटेगरीज हैं, Hmm. राइट। यू हैव लार्ज कैप फंड्स, यू हैव मिड कैप फंड्स, यू हैव स्मॉल कैप, यू हैव सेक्टर, राइट।
आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन है। अगर आपकी 12% रिटर्न एक्सपेक्टेशन है तो स्टिक टू लार्ज कैप फंड्स, ओके। तो वो सेफ रहेंगे, वोलेटाइल कम रहेंगे। बट अभी क्या हो गया लास्ट 4 साल में, बिकॉज स्टॉक मार्केट्स हैव गॉन वन वे, सब लोगों को लगता है कि यार 18-20% तो आराम से बन जाते हैं, एंड दैट्स हाँ व्हाई सर। यू सी मैक्सिमम पीपल पुटिंग मनी इन मिड कैप, स्मॉल कैप सेक्टर फंड्स, right? But one thing, let me remind you, I've been there into this market for 20 years. I've seen 3 cycles. Markets can be very ruthless, okay? And markets do not care who you are. राइट। तो मार्केट्स आपको रुला के भी छोड़ सकता है, 5-5 साल जीरो रिटर्न्स बनते हैं। और खासकर आई वुड लाइक टू वार्न यू इन दिस ईयर, बिकॉज लास्ट 4 years वन वे हमने मार्केट्स देखे हैं कोविड के बाद। मार्केट्स का एक ही नियम है, मार्केट हैज टू बी सिक्लिकल। राइट। जो जस्ट लाइक इन आर वेदर वी सी विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, तो मार्केट्स में भी उतार चढ़ाव, फ्लैट मार्केट्स आने ही आने हैं। तो अगर 4 साल की तेजी रही है, वन वे राइड रहा है, बी प्रिपेयर्ड, मे बी दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर इट कैन बी द फ्लैट मार्केट्स की 2 साल मार्केट कहीं चले ही नहीं है। और इवन वर्स, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर 10-20-30% करेक्शन ऑल्सो। वो कब राइट। आएगा, कहाँ से आएगा, नोबडी नोज, नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट, बट इट इज द नेचर ऑफ द मार्केट कि वो आना ही है। और अगर वो नहीं आता है, देन मार्केट्स इज ओनली बिकमिंग मोर एंड मोर रिस्कियर। राइट। राइट। अगर हमारे लाइफ में खाली अच्छे ही अच्छे दिन आएंगे ना, तो हमें दुखी दिन की वैल्यू समझ में नहीं आती है। जब राइट। आप दुख से राइट। निकलते हो ना, तभी आपको सुख का एहसास होता है। नहीं सर, आपने एग्जैक्टली बहुत सही पॉइंट बोला, बिकॉज व्हाट आई सी कि लोग ज्यादातर अभी यही उम्मीद किए हुए हैं कि 18-20% तो मिलेगा। अगर आप कह दो कोई 12-14%, तो ऐसे देखते हैं कि ये क्या बात कर दी तुमने, इतना कम तो बहुत कम है हमारे लिए। तो सर अगर इसकी बात करें तो आई थिंक देन SIP विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड योर कंसिस्टेंसी एंड योर मे बी जितने आप डेडिकेशन के साथ करते हैं, इट विल मेक द डिफरेंस। सो हाउ यू रिमेन प्रूडेंट विद योर SIP, इतने साल से आप कैसे यार? एंड वी वांट टू टॉक अबाउट रोल्स रॉयस, जो आपने बोला कि SIP के थ्रू ही परचेज करूंगा मैं। बिल्कुल। सो देखो, एस आई पीज टू माई माइंड हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन इन इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। हालांकि ये एस आई पी 2001-2 से चालू हुई थी, बट पहले 15 साल लोगों ने कभी इसका वैल्यू नहीं समझा, 15 years। राइट। 2015 के बाद ये जो बहुत सारे एड्स आने चालू हुए, और म्यूचुअल खासकर फंड से। कोविड के बाद, हाँ खासकर कोविड के बाद ये बहुत अच्छा पकड़ हमने देखा है। आई एम श्योर आज की डेट में हमारे जितने भी व्यूअर्स वॉच कर रहे होंगे, 90% ऑफ देम किसी न किसी फॉर्म में म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे होंगे। आई एम प्रीटी राइट। श्योर अबाउट दैट। तो एसआईपी इज नॉट एन इट्स नॉट एन इंटेलिजेंट टूल, ओके, इट्स अ वेरी डम टूल। बट ये डम टूल ही आपका पैसा बना रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, आप दिमाग नहीं लगा रहे हो। हर महीने की 1 तारीख को आपकी सैलरी आती है, और सपोज 5 तारीख की आपने एसआईपी दी है, तो 5 तारीख को वो पैसा ऑटोमेटिकली निकल जाता है। उस वक्त राइट। मार्केट ऊपर है, नीचे है, इट डजेंट, मतलब इट डजेंट यू, यू डोंट केयर। और चूंकि वो पैसा निकल के इन्वेस्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है, और अचानक आप 2-3 साल बाद देखते हो, तो आपको देखते हो अरे इतने पैसे अलग हो गए, और रिटर्न्स भी बन गए उस पर। राइट। यही चीज मैं अगर आपको बोलता है कि शशांक एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ यू डू इट मैनुअली, तो आप उस दिन मार्केट देखोगे, अरे आज मार्केट 3% ऊपर है, आज नहीं डालता हूँ, जब क्रैश होगा तब डालूंगा। राइट। तो फिर आपका डिसिप्लिन, आपने डिसिप्लिन तोड़ दिया। अनफॉर्चुनेटली क्या है, ये एसआईपी का जो डिसिप्लिन सिर्फ फाइनेंस में है, ये और भी हमारी बाकी लाइफ में आ जाता है, हेल्थ को लेके, कि ऑटोमेटिकली आपको सुबह कोई उठा के एक्सरसाइज करवा रहा है ऑटोमेटिकली, राइट? तो आप, हम सब हेल्दी रहते, राइट। बिकॉज यहाँ पे हम अपना दिमाग लगा लेते हैं, अपनी मनमानी कर लेते हैं। विंटर है, चलो यार आज नहीं उठते हैं, आज आज वॉक पे नहीं जाते हैं, राइट? वो डिसिप्लिन नहीं आ पाता है। राइट। तो एस आई पी, और मैं बोलता हूँ कि आज मैं CFA हूँ, मैंने सारी डिग्रीज की है, बट आज जो मेरी वेल्थ बनी है शशांक 15 साल में, इसलिए बनी है क्योंकि मैंने दिमाग नहीं लगाया उन पैसों पे। जो मैंने SIP कमिट कर दी, वो SIP हर मंथ ऑन मंथ जानी है। मैंने दस अभी हजार आप रुपए कितने की की सर, कितने की आप SIP से आपने स्टार्ट किया था सर, और अभी सो कितने मैंने आप? मैंने 10,000 रुपए की SIP से चालू किया था। इट वॉज इन 2010 हम्म। अगस्त। हम्म। 5-5 हजार की दो फंड्स लिए मैंने, 10,000 की SIP की। और अच्छी बात क्या है, आई हैव नेवर एवर मिस्ड एनी इंस्टॉलमेंट इन दोज SIP। आज के दिन में करीबन 8.5 रुपए मैंने दोनों फंड में डाल दिए हैं। इट्स बीन मोर देन 14.5 years नाउ। लगभग राइट। 17 लाख रुपए का कॉर्पस मैंने डाल दिया है, और आज उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 90 lakhs रुपीज, वो दो फंड्स की हो गई है वैल्यू। टेन नाइस। थाउजेंड रुपीज SIP फॉर 14.5 years।
today I'm sitting on 90 lakh rupees corpus. Average returns is around 20% per annum compounded. एक Right. स्मॉल कैप फंड था और एक टैक्स सेविंग फंड था. उतार चढ़ाव बहुत आए, बट मैंने कभी एसआईपी बंद नहीं की, और मुझे नहीं लगता वो एसआईपी मैं कभी बंद करने वाला हूँ. एंड आई टेल यू व्हाई. वो मेरी लाइफ की फर्स्ट एसआईपी थी, और जस्ट लाइक पहला प्यार होता है, तो पहली एसआईपी आपको हमेशा स्पेशल होती है. Right. दूसरी रीजन मैं उसको इसलिए बंद नहीं करना चाहता, एक तो बहुत छोटी अमाउंट की है, तो क्यों बंद करनी है, इट डजेंट रियली इम्पैक्ट माई लाइफ. बट तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, मैंने क्यों बंद, मैं कभी बंद नहीं करूंगा उसको, चाहे कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट आज के डेट में. मैंने उसके बाद एसआईपी बढ़ाते गया, और आज वो 30 lakhs का फिगर है पर मंथ. मी एंड माई ब्रदर्स वी आर डूइंग दिस. ऑफ कोर्स ये सारी जो पैसे आ रहे हैं वो हमारी मेहनत के पैसे हैं. वी आर वर्किंग वेरी हार्ड सैटरडे संडे, बिकॉज वी आर एंटरप्रेन्योर्स, वी लव दिस वर्क. तो हमें हॉलीडेज भी, ठीक है, हम हॉलीडेज भी लेते हैं जब मर्जी तब लेते हैं, हमें संडे तक का वेट नहीं करना पड़ता. वी कैन टेक हॉलीडेज ऑन वीकडेज ऑल्सो. बट बिकॉज वी लव दिस वर्क सो मच कि इन योर माइंड 24/7 यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट द वर्क. Right. Right, sir. है ना. एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग से वो निकालना बहुत मुश्किल होता है. चाहे चाहे वो amazon हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, किसी की भी बात कर लें हम. Hmm. राइट. तो जितनी आप मेहनत करोगे, जितना दिमाग लगाओगे, उतनी आपकी फर्म में इनकम आ सकती है. Right. एंड दिस प्रिविलेज यू कैन ओनली गेट इफ यूर एन एंटरप्रेन्योर. वहां रिस्क भी बहुत है. देखो, Hmm. 90% एंटरप्रेन्योर सक्सीड नहीं होते हैं, 10% लकीली इतना पैसा बना पाते हैं. एंड आई Right. एम लकी कि आई वॉज ऑन दिस राइट साइड ऑफ 10%. तो जितनी भी इनकम हम करते हैं, हम और कहीं दिमाग नहीं लगाते, हम सारी की सारी एसआईपी करते हैं. तो आज की डेट में वो 30 lakhs की एसआईपी जा रही है. और इससे वन इडियट बनना है, जो वो मूवी एक है वन इडियट, विच आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड ऑल आर व्यूअर्स टू वॉच इट. इट्स अ फ्री मूवी ऑन यूट्यूब. 33 minutes की मूवी है. दिस मूवी चेंज माई लाइफ 14 years बैक. जब मैंने वो मूवी देखी, उसमें वो इडियट जिसको सारी दुनिया इडियट बोल के बुलाती है, दैट इडियट वाज वर्थ 100 crores. एंड आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मुझे भी ये वन इडियट बन के दिखाना है बिफोर आई टर्न 50. एंड ऑल्सो मुझे रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदनी है, बिकॉज इन दैट मूवी दैट बॉय एंडेड अप बाइंग अ रोल्स रॉयस कार बाय द टाइम ही वाज 40 or 45. और रोल्स रॉयस गाड़ी, एज यू कैन सी, मैं आपको मेरी स्क्रीन दिखाना चाहूंगा. ये रोल्स रॉयस गाड़ी आपको दिख रही है. Oh, right there on the table. Yes, this is original Rolls Royce car. I want to show you. ये अगर आप देखेंगे, this is the car which I would like to show our viewers. So this I got from original Rolls Royce showroom in London. 1 लाख रुपए का ये मॉडल है खाली. बट ये ये, रिमाइंडर, हाँ, डेली रिमाइंडर है आपके ये लिए कि डेली ये. रिमाइंडर है. बिकॉज अगर आप आपके सामने है ना, तो आप सीरियस होते हो. मेरे आप पीछे देखोगे ना, मेरे पीछे बोर्ड पे भी ये देखो, रॉल्स रॉयस का फ्रेम लगाया हुआ है ऊपर में, राइट. कि ये आपको याद दिलाता रहे कि आपको ये गोल अचीव करने हैं. तो ये 15 करोड़ की गाड़ी होगी जब तक मैं लूंगा, उसके लिए भी मैं एसआईपी कर रहा हूँ. बट बाकी सब एसआईपी शायद मुझे कभी ना कभी लाइफ में तोड़ना पड़ेगा, राइट. बिकॉज लाइफ के गोल्स आएंगे. ऐसा तो है नहीं कि आपको खाली वेल्थ बढ़ानी और एंजॉय नहीं करना है. बट ये जो 10,000 की एसआईपी जो मैंने चालू की थी, ये मुझे रिमाइंड दिलाएगी कि देखो, आप अगर नहीं तोड़ते हो कोई चीज, तो उसका पावर क्या आ जाता है, अनइंटरप्रेटेड पावर ऑफ कंपाउंडिंग. राइट. तो इसीलिए मैं सारे व्यूअर्स को एक एक लाइफ में टिप देना चाहता हूँ. आप शायद 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए की एसआईपी कर रहे हो आज की डेट में. एक एसआईपी जो सबसे छोटी रकम की है, जो 2,000 की है या 5,000 की है, अपने आप को प्रॉमिस करो कि वो एसआईपी आप कभी लाइफ में नहीं तोड़ोगे. राइट. एंड आई एम श्योर शशांक, वो इतना मैटर भी नहीं करेगा, छोटी सी अगर है. हम्म. राइट. उस एसआईपी को आप कभी मिस मत करना. उस एसआईपी को आप कभी तोड़ना मत. बाकी आप लाइफ में गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए आप आराम से यूज करो. आई हैव नो प्रॉब्लम. द रीजन व्हाई आई एम सेइंग डोंट ब्रेक दिस एसआईपी is because this will remind you what is the power of compounding. राइट. Right. And hopefully अगर आपने ये सीख लिया ना, तब आप लाइफ में जब जब ठीक है गोल जरूरत होगी आप तोड़ोगे, लेकिन आप कंटिन्यूसली सेव भी करते जाओगे फॉर अदर गोल्स. एंड यू वुड हैव अंडरस्टूड द गेम ऑफ कंपाउंडिंग इन योर ओन पोर्टफोलियो. देन तब आपको ये पॉडकास्ट पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं. आपने खुद अपनी लाइफ में देखा है.
आज राइट। तो हम आपको बता रहे हैं और आप बिलीव करके करोगे, बट जब आपने लाइफ में खुद वो चीज एक्सपीरियंस कर ली है ना, दैट विल स्टे विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. सो आई दिस थिंक इज सच माय छोटे में एडवाइस. सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बहुत इजी होते थे मैथ्स में, तो लोगों को वो इजी लगता था, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा ट्रिकी हो जाता था तो हम चाहते थे कि वो क्वेश्चन नहीं आए, हाँ, हमारे पेपर में पेपर नहीं में नहीं आए. बट मैं आपको बताऊं, लाइफ में वही एक फॉर्मूला है जो आपको दुनिया में पैसे बना सकता है. सिंपल है। इंटरेस्ट से कोई अमीर नहीं बने है. राइट, राइट। तो डू यू बिलीव इन पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, जैसे आपने मेरे को दिखाया कि इफ यू हैव दैट थिंग इन योर माइंड एंड यू बिलीव कि हाँ समवेयर डाउन द लाइन आई विल बी एबल टू अचीव इट। मैंने लाइफ में ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, आई एम वेरी रेडिकल पर्सन इन दैट सेंस, यू नो, आई एम वेरी अलग पर्सन. मैं कुछ सोच लेता हूँ ना, तो फिर मैं करके रहता हूँ, आज नहीं तो कल. और मेरे जो थॉट्स हैं बहुत यूनिक है. आई एम नॉट सेइंग मेरे थॉट्स सारे राइट हैं या रॉन्ग है. राइट, जो मेरे लिए राइट हो सकता है आपके लिए रॉन्ग भी हो सकता है. वी ऑल आर यूनिक. बट आई हैव वेरी वेरी डिफरेंट थॉट्स. जैसे मुझे घर नहीं लेना था, आई स्टिल स्टे ऑन रेंटल फ्लैट. ऐसा नहीं कि मुझे जिंदगी भर नहीं लेना, बट मुझे 15 साल, जो मैंने आपको अभी बताया, 15 साल नहीं लेना, तो मैंने पहले वो अपनी लाइफ में उसको एक्सपीरियंस किया. और आज आज जब मैं 15-20 साल बाद बता पा रहा हूँ, तो आई कैन से विद सर्टेन अमाउंट ऑफ कन्विक्शन एंड एक्सपीरियंस. मैं राइट, यूं ही बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. ओके, एंड बिकॉज आई हैव लिव्ड लाइफ 5 minutes फ्रॉम वर्क टू ऑफिस, फॉर लास्ट 10 years आई बीन हैविंग लंच एट माई होम. कैन यू इमेजिन? हम्म, इससे बड़ी लग्जरी आपको क्या मिल सकती है? एंड राइट, आई एम राइट, श्योर राइट। लोगों ने ये लग्जरी खाली कोविड में चेक ही होगी कि यार घर पे खाना हाँ, काम करते करते. और राइट, जैसे राइट, ही अब आप वापस ऑफिस चालू हो गई, तो डब्बा चालू हो गया वापस. राइट। करेक्ट. तो ये बिगेस्ट लग्जरी है. तो मैंने कभी गाड़ी, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, दो आई वांट टू बाय रोल्स रॉयस. बिकॉज इन मुंबई आई बिलीव द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज वेरी गुड. माई स्टेशन इज 2 minutes वॉक फ्रॉम माई हाउस. आई राइट, स्टेट मरीन ड्राइव. वेरी अमेजिंग लोकेशन. तो तो लाइफ में जो चाहिए था सब मिला है, बट इन अ स्मार्ट वे. आई वॉक अबाउट दिस. ओके. यू. सो दैट इज देयर, एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन. कि राइट, मैंने जो नजर रख ली कि हाँ मुझे इस पे करना है, देन आई विल ट्राई एंड वर्क माई वे टू अचीव दैट. एंड ऑफ कोर्स आई विल वर्क टुवर्ड्स इट. आई पुट माई एफर्ट्स. प्लान करूंगा. इट्स नॉट कि रैंडम थॉट अचानक रात में आया और कल जाके आपने ले लिया, वो नहीं. राइट, हर चीज के लिए प्लानिंग करने की, 5 साल में कैन आई डू दिस, कैन आई डू दैट, चाहे कितना ही बड़ा गोल. सो जैसे हमने कमिलियाज की बात की, अगर पता नहीं है, बट कभी ऐसा दिमाग में आता है कि ऐसी कमिलिया टाइप की कोई चीज लेनी है, 100 करोड़ लगते हैं, तो देन आई गो. इफ आई लाइक इट एंड इफ इट इज वेरी डियर टू मी, आई वर्क फॉर इट. राइट। तो इस पे एक क्वेश्चन आता है कि हाउ यू कीप ऑन अप स्किलिंग योरसेल्फ, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस अपार्ट फ्रॉम रीडिंग, इंटरेक्टिंग विद पीपल। सी, आई टेल यू, इन आवर प्रोफेशन, लर्निंग इज द ओनली रॉ मटेरियल दैट यू हैव. राइट। जो पैसा मिलता है ना हमें, आज सिर्फ इसके लिए मिल रहा है और कुछ नहीं है. हम्म, वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग टेंजिबल. राइट. हम कोई फोन, घड़ी, मोबाइल कुछ तो बेच नहीं रहे हैं. हम्म, हम, हमारा दिमाग का जो है वही चीज हमारे इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि, और हमारा एक्सपीरियंस सेल करें, मतलब 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाट वी आर डीलिंग विद. राइट, तो अगर इसको शार्प रखना है ना, तो उसको बहुत यूज करना पड़ता है, इन द सेंस, वो, वी हैव ऑल हर्ड दैट स्टोरी ऑफ एक्स इन द ट्री, राइट. वो एक आदमी है जो 8 घंटे खाली काटते रहता है, और एक आदमी है जो 7 घंटे खाली शार्पन करते रहता है, राइट, और 1 घंटा ही काटता है और उससे ज्यादा काट लेता है पेड़ को. राइट, तो मेरी हमारी लाइफ में भी आज मुझे 20 साल हो गए हैं, बट आई कांट बी कॉम्प्लेसेंट. इफ आई थिंक कि नहीं, टुडे वी आर मैनेजिंग 2,500 crores, 10,000 कस्टमर, लाइफ इज इजी. ऑफ कोर्स आई कैन अफोर्ड टू रिटायर टुडे ऑल्सो. बट राइट, ये बात रिटायरमेंट की नहीं है, ये बात पैसे की नहीं है, ये बात है टू मेकिंग एन इम्पैक्ट इन पीपल्स लाइफ्स. राइट, तो आई कांट से कि बॉस अभी मेरा 100 करोड़ हो गया है, नाउ आई एम सेल्फिश, टाटा बाय बाय. आई हैव टू वर्क इवन हार्डर. व्हाई? बिकॉज I believe God has given me the skill to do this. And I'm राइट, lucky that I'm one of the few people who has the power to amplify this. I mean, thanks to platforms like yours, right? You are giving us an opportunity to amplify this message to millions of people. राइट, राइट, तो अगर अच्छी बात हम लाखों लोगों तक पहुंचा सकें, उनको इंस्पायर कर सकें विथ अ ट्रू स्टोरी, ऑथेंटिक स्टोरी, बिकॉज दिस रियल वन इडियट स्टोरी मोटिवेटेड मी. इफ दिस रियल वन इडियट स्टोरी मोटिवेट्स थाउजेंड्स अदर पीपल, तो यार क्यों नहीं. और और द ब्यूटी इज बिकॉज दिस इज नॉट अ वर्क फॉर अस, दिस इज अ पैशन. तो आप जो पढ़ते हो 2-3 घंटा, वो कोई एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो. हम्म, एग्जाम के लिए पढ़ाई करने में सबको चोट आती है, सबको
एक तरह का वो लगता है। बट ये आप मुझे आज मुझे सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होता है मालूम है शशांक? वी बिकम सो बिजी इन आवर लाइव्स। थैंक्स एंड इट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम टू हैव कि आपके आपके ऑफिस की बाहर 50 लोगों की लाइन लगी है और ऑनलाइन में 50 लोगों की लाइन लगी है, दे वांट टू बी हेल्प बाय यू, Right, and because you're so busy helping them you have no time to read those amazing books which you always wanted to read. right, right. तो आज मेरा Well, सबसे बड़ा रिग्रेट है कि यार मैं अच्छी बुक्स पढ़ नहीं पा रहा हूँ, समय नहीं है। संडे को भी हम इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने लिखा सर आपसे मिलना है, बात करनी है, तो आप आपको लगता है यार उनको हेल्प करूं कि मैं खुद की ये हॉबी, जो आप हॉबी बोल दो या जो भी लर्निंग कर दो, इट्स अ वेरी फाइन बैलेंस दैट यू टू मेक। so which are the books that you find very inspiring जो आपको आपकी फाइनेंशियल जर्नी में काफी अच्छी लगी कि and you would recommend audience also कि एटलीस्ट ये तो पढ़ो ही पढ़ो? मेरे ख्याल से साइकोलॉजी ऑफ मनी इज माय बिगेस्ट द सेम। बहुत Yeah, बहुत अच्छी same बुक here. है। Right, इट्स अमेजिंग बुक। दिस बुक विल टीच यू मच मोर अबाउट फाइनेंस देन एनी अदर बुक। इन द सेंस लोग समझते हैं फाइनेंस मतलब हार्ड साइंस, right, रॉकेट साइंस, एंड इन दिस बुक इट सेज योर सॉफ्ट स्किल्स आर फार मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड साइंस। योर right, बिहेवियर इज फार बिगर देन ये शार्प रेशियो और एक्सपेंस रेशियो वगैरह आप अगर अपने आप के बिहेवियर को कंट्रोल करें तो यू विल मास्टर दिस वेल, यू विल बी मोर right, पीसफुल। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी इज बिग, इज गुड। रिच डैड पुअर डैड टॉक्स अबाउट मेंटालिटी। It tells you about that why at some stage in your career you should become an entrepreneur in life. If you're right, so good, right? If you're so good and you think the world needs your service, you have to take that risk. देखो रिस्क नहीं लोगे ना, one of the biggest problem when we are working is monthly salaries like cocaine, वो नसीम निकोलस तालिब बोलते हैं, it's an addiction. right, आज मैंने 20 साल पहले स्टार्ट किया एटी का, 15 साल पहले। आई कैन टेल यू मेरे जो फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, दे आर फार मोर इंटेलिजेंट देन मी, दे वे right, फार मोर ब्रिलियंट। उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, आज भी मेरे से ज्यादा नॉलेज है, बट दे आर स्टिल स्टक इन द जॉब बिकॉज उनमें वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं थी, right. राइट? और दिस इज वन स्किल विच इज नेवर टॉट इन बिजनेस स्कूल्स। ये आपको आपके, मैनेजर्स हाँ थे, लीडर्स थे। हाँ, ये आपको आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास 3-4 साल का घर का खर्चा है निकालने के लिए, 3 to 5 years, देन टेक दैट रिस्क इन योर लाइफ, बिकॉज एक ही लाइफ है। आज आप ले सकते हो, आफ्टर 20 years यू विल नॉट बी एबल टू टेक दिस रिस्क। ओके So, सो और वही एक मौका है जिसमें आप 50x 100x पैसा भी बना पाओगे, आपके लाइफ में जो आपका पैशन था वो भी आप परस्यू कर पाओगे। होपफुली व्हाट यू डूइंग विल बी हेल्पफुल टू द वर्ल्ड ऑल्सो। इट्स अ प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, right. तो यू आर टिक बॉक्सिंग ऑल द आइटम्स देयर। आई थिंक वेरी राइटली टोल्ड भाई, क्योंकि एक ये क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे को आज जॉब छोड़नी है तो कितना मेरे पास कॉर्पस होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू यू 3 to 5 year के आपके एक्सपेंसेस इफ दे आर टेकन केयर ऑफ, देन यस यस। टेक दिस लीप ऑफ फेथ। अगेन ऑफ कोर्स इट आल्सो डिपेंड्स शशांक कि जो न्यू वेंचर में आप लगा रहे हो उसमें कैपिटल कितना लगने वाला है। राइट, If you are राइट, building a business which is heavy on capital, then of course you'll have to have more buffer. राइट, But something like if it is a knowledge-based economy and you're doing something like consulting or where capital requirement is very minimal. But राइट, of राइट, course, if you're not sure about revenue earning, then 3 years buffer is a good idea. राइट, राइट, Yeah. गेट इट। So there is one also question around ETFs. ETFs and mutual fund में अगर audience को समझाना, what's the basic difference? And if I'm thinking about investing, should I also start exploring ETFs or sticking to mutual fund is a good strategy? So see, ETF are nothing but ETF and index funds are same. जो मैंने आपको index fund का example दिया था, index funds उनके लिए होता है जिसके पास डीमैट अकाउंट नहीं है। ETF उनके लिए जिसके पास डीमैट अकाउंट है, you can buy in a डीमैट account. ETF is like a share which you can buy and sell in market hours also. But it is a mutual fund that you can buy like a share. मतलब it's a index of, it's a basket of 50 companies. जैसे आप रिलायंस का शेयर बाई करते हो, आपने निफ्टी का शेयर बाई कर लिया, Got it. सुबह 9 बजे बाई किया और दिन में 12 बजे भी बेच दिया, तो वो Right. ईटीएफ में फायदा होगा। बट वो आपको करना क्यों? क्योंकि दैट इज अ ट्रेडर मेंटालिटी। आपने लिया, खरीदा, बेचा। वी आर हियर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। Right. तो रादर देन ईटीएफ आई वुड से गो फॉर इंडेक्स फंड इफ यू डोंट वांट टू गो इन एक्टिव फंड्स एंड यू आर अ डीआईवाई इन्वेस्टर। Right. तो आप एटलीस्ट इंडेक्स फंड में चले जाओ जो आपको, और ईटीएफ और इंडेक्स फंड का रिटर्न सेम ही है बिकॉज बोथ आर अंडरलाइन इज द सेम ओनली। Right. तो Got तो तो सो गो फॉर इंडेक्स फंड एंड जस्ट पुट योर मनी देयर ओनली फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। There are a lot of women professionals also follow the page, or I see them mostly doing fixed deposit.
So if they have to start their investment journey, so strategy should remain the same, like you talked about Nifty 50 या Nifty 500 के साथ ये भी अपना start कर सकते हैं, या there are women specific format schemes also that No. they. So first of all, through this medium, I would like to request all women viewers who are there. First of all, please from today onwards take charge of your money. आप जब पैसा अर्न कर सकते हो, आप में अगर इतनी स्किल भगवान ने दी है, तो आई एम श्योर आप वो पैसा इजीली मैनेज भी कर सकते हो. Please don't be dependent on any male member in the family, be it your parents, brothers, husband, कि नहीं ये मेरा डोमेन नहीं है, मेरा काम था कमाना और अभी वो जानते हैं. आई थिंक यू आर डूइंग बिगेस्ट डिससर्विस टू यू, बिकॉज until you are confident of managing your own money, you will never be able to walk tall. You're always dependent on someone. और जिस दिन आपको खुद का पैसा मैनेज करने की क्षमता और कॉन्फिडेंस आ गया ना, बिलीव मी, योर कॉन्फिडेंस लेवल विल गो इन अनदर stage altogether. Right. And it will not just reflect, it will reflect in your professional life, it will reflect in your character also. Okay, no matter how good you might be in your work or how good might be in your art or skill, if you're not good with managing money, you will face major consequences later in your life. Right. And I'm telling you because I have an investor, she's a huge fashion influencer. She started working at the age of 18 and was earning a great amount of money. But when she was still 26, she says, Gajendra, मैंने जितने भी पैसे कमाए, I can't figure it out वो पैसे गए कहाँ आज तक. Right? And at 26, I met you, you made me teach the values of finance, and today she feels so confident about herself. Right? Today, anything she has to do, उससे पहले वो हमेशा पेरेंट्स के पास, हस्बैंड के पास जाती थी. Today, she trusts so much on us because she has seen the results in the last 5-6 years. Right. She has understood how this game works. She has understood the power of compounding. Now she doesn't have to depend on anyone. तो जब उनके साथ हो सकता है, she doesn't come from finance background, तो I'm sure आप लोग भी आराम से कर सकते हो. And as you rightly said, if you have to start, the simplest way to start, as I said, is index fund. वहां तो कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है, right? और अगर आपको और डिटेल प्लानिंग चाहिए, then I would say find a good advisor. ऐसे नहीं है कि नहीं मिलते हैं. You can always search on Google or this thing, and 2-3 advisors के साथ आप बात करोगे तो you'll figure it out कि, you know, जैसे how do you find a good doctor, शशांक? Either through word of mouth, अपने फ्रेंड्स, दोस्तों से पूछते हो, या फिर आप गूगल में रिव्यूज पढ़ के जाते हो, ढूंढ के जाते हो. 2-3 जनों से मिलोगे तो आप ट्रायल एरर होगा, आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, एंड एक के साथ स्टार्ट करो आप. आई एम श्योर यू विल इवॉल्व इन दिस जर्नी. I think sir अभी भी a lot of people in investing space depend on tip के basis पे जाके purchase buy करते हैं. That emotional bias needs to go देखो, away. टिप के बेसिस पे वेल्थ नहीं बनती है कभी भी, राइट? अगर आपको बहुत सारी वेल्थ शांति से बनानी है, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, यू हैव टू इन्वेस्ट योर एफर्ट्स, मनी इनटू फाइनेंशियल एजुकेशन, राइट? तभी आप एक सस्टेनेबल वेल्थ पीसफुली बना पाओगे. नहीं वेरी राइटली सेड, क्योंकि सर मैंने टिप बेसिस पे 2017 में एक पानी की टंकी का शेयर ले लिया था. वो कंपनी का नाम नहीं लूंगा. दोस्त ने बोला कि पानी की टंकी तो सबके घर होती है, ले ले. आज की डेट में वो 1 रुपए का है. तो वो जो 30-40,000 का लॉस है वो आज तक काफी अखरता है कि ये कैसे हो गया. बट मूव अहेड सर, आई to understand ki what do you see role of AI in this particular industry? The people have started asking ChatGPT and Gemini of the world to build a finance plan or wealth plan. But do you see ki AI will start impacting this financial planning also, or you are also deploying it in the way you consult your clients? So, see, I always believe AI per se will not disrupt us, but the people who are using AI will disrupt us. Right. You know, so our competition is not AI, but the competition is people who are smartly using AI. Right. So see, as an entrepreneur, I always say never कि ऐसा कभी नहीं होता है, right? कुछ भी हो सकता है. You should be always on the edge of your seat. Right. If the day I become complacent, I think I'm finished. Many leaders are, of course, comparing AI to like internet. Right? It is such a big revolution. Of course, it's still early days. We'll see, and AI is also evolving. But one thing for sure I believe is that you can't completely depend on AI because money is a very emotional topic. It's a very emotional subject, right?
जब मार्केट्स क्रैश होते हैं 40% एआई में स्टिल से ओके यू नो डोंट डू इट, बट व्हाट गोज इन योर हेड एंड यू वांट टू टॉक टू समवन, राइट राइट? यू वांट, देखो आपने और मैंने वो मूवी देखी है, थ्री इडियट्स। राइट। आमिर खान क्या बोलता है? ऑल इज वेल, ऑल ऑल इज वेल। राइट? तो कई बार आपको पता है सब खराब चल रहा है, फिर भी आप अपने आप को एक बोलते हो, कोई एक दोस्त चाहिए होता है, हम्म। कोई एक फ्रेंड, कोई एक ट्रस्टेड पर्सन चाहिए होता है कि ऑल इज वेल, डोंट वरी। राइट उस वक्त वो काम एआई नहीं कर सकता, एटलीस्ट आज की डेट में तो नहीं कर सकता है, वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। बट राइट बिकॉज मनी इज अ वेरी इमोशनल टॉपिक, मनी इज वेरी पर्सनल, एंड एंड यू नीड समवन टू हैंड होल्ड यू, राइट। राइट? तो मुझे लगता है एआई कंप्लीटली डिसरप्ट नहीं कर पाएगा, बट हाँ, एज एन एडवाइजर इफ आई एम यूजिंग एआई, आई कैन ऑटोमेट लॉट ऑफ माई फंक्शंस, लॉट ऑफ माई टास्क, राइट? कर सकता हूँ। सो आई बिलीव इन आर प्रोफेशन इट हैज टू बी हाई टेक, हाई टच, गॉट इट। हाई टेक हाई टच। हम्म। करेक्ट? सो हाई टेक हम्म। मतलब जो भी नॉन एसेंशियल टास्क है, जो भी मंडेन, जो भी रूटीन है, वो सब एआई को टेक ओवर करने दो, सो दैट यू फ्री अप मोर ऑफ योर टाइम, एंड देन कैन आई मीट 50 investors, 100 investors per day through राइट these online mediums or whatever. So राइट I'm able to reach out to more and more. राइट। So that could be a good combination. Got it. And so there are people who follow the page for career and professional development. So what kind of skills you look at when you are hiring for your team, and what kind of candidates definitely stand out जब आप interview करते हो? See, the only one skill which I look or think is for hunger for growth. Right. मुझे और कुछ नहीं देखना, मैं आई नेवर सीन CGPAs इन देयर मार्कशीट्स, क्या डिग्री है, फर्स्ट क्लास हुई सेकंड क्लास। मैं पूछता हूँ बॉस तुम्हें कितनी भूख है, कितना पैशन है, एंड इफ यू आर कमिंग टू वर्क विद अस फॉर मनी, डोंट डोंट कम, एटलीस्ट टू Right. बिगिन विद। यू नो, जैसे मैंने आपको क्या बताया, MBA कॉलेज में हम क्यों जाते थे, कौन सबसे ज्यादा सैलरी देता है? Placement focus. प्लेसमेंट फोकस, हाइंडसाइट में वो सबसे गलत था। अभी आपने देखा था कि दीपेंद्र गोयल, वो एक उनका वायरल हुआ था, उनको असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट चाहिए था, और उन्होंने लिखा हाँ, कि फॉरगेट आई पेइंग यू, यू हैव टू पे मी 20 lakhs lakh rupees. Right. रुपीज। बिलीव मी, अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलती 20 साल पहले, मैं बैग बोरो स्टील करके कुछ भी करके 20 लाख रुपए लाके उनको पे करता, Right. राइट? क्योंकि मुझे मालूम है मैं वहां से जो सीखने वाला हूँ, वो मुझे वो आगे count कर। एक दिन मुझे शायद 2000 करोड़ भी बना के दे सकता है, 2000 करोड़। क्योंकि Right. दीपेंद्र गोयल ने अगर वो कंपनी जोमेटो खड़ी की है, विच इज वर्थ मे बी 10-15 thousand crores और वट एवर मोर, 1 लाख करोड़, तो यार उनकी छत्र छाया में रहेंगे तो शायद हम भी 2000 करोड़ तो बना ही लेंगे, तो 20 लाख तो कुछ भी नहीं है, Right. राइट? तो आज मैं वही, जो भी आते हैं हमें अप्रोच करते हैं, मैं उनको पूछता हूँ कि बॉस, हंगर फॉर ग्रोथ है क्या? 3 साल आपको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, 3 से 5 साल आपको शायद कुछ, आप बैरली सर्वाइव करोगे, आपको जो हम्म। इनकम मिलेगी आपका खाली खर्चा निकलेगा, Right. आप शायद ज्यादा सेव नहीं कर पाओगे। पर अगर आप 3 साल 5 साल टिक गए, उसके बाद जो आपने पहले 3-5 साल में नहीं कमाए हैं ना, वो सब आपको ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ मिल के आएंगे, और फिर हर Right. साल आप उतना कमाओगे कि जितना आपने, मतलब 5 साल में जो नहीं कमाए वो छठे साल में कमाओगे। Right. Compounding अपना play एग्जैक्टली, दिखाएगी। जब हम इन्वेस्टर्स को बता रहे हैं कंपाउंडिंग टाइम लगता है, हम खुद के लिए कंपाउंडिंग का गेम खेल रहे हैं, तो आपको भी तो वो खेलना ही पड़ेगा ना, इफ यू आर इनटू दिस गेम। बट Right. इफ यू कमिंग फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, नहीं मुझे आज 15 लाख रुपए चाहिए, यू नो, तो फिर आई थिंक यू आर हैविंग अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। अगर हंगर है आप में, वी विल ट्रेन यू फॉर एवरीथिंग। आपको Right. इंग्लिश आती है नहीं आती है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग ये जो भी है आता है नहीं आती है, टेक्निकल स्किल्स आती है नहीं आती है, ये सब सब हो जाती है। हम्म। आप में हंगर होना चाहिए कि 24/7, 7 days a week, कैन यू वर्क लाइक क्रेजी बिकॉज यू लव इट, नॉट Right. नॉट बिकॉज ऑफ मनी और अदर फैक्टर्स। So what is your take on 70 hour week जो नारायण मूर्ति सर का काफी फेमस हो रहा है? There are two sides to it. Which side are you on? या आपका different take है completely? सी, देखो, जो लोग भी दुनिया में सक्सेसफुल रहे हैं, उन्होंने 70 के 100 आवर से वीक भी किए हैं, जो लोग भी हैं, Right. चाहे वो स्टीव जॉब्स हैं, चाहे जेफ बिजोस है, सबने हसलिंग की है, देखो। हम्म। तो आपको लाइफ में कुछ बड़ा बनाना है ना शशांक, तो ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, Right. ये बात मान लो। या कंफर्ट जोन इज अ वेरी हैप्पी प्लेस टू बी इन, बट नथिंग ग्रोज देयर, Right. राइट? वहां कुछ मैजिक नहीं होता है, हम्म। मैजिक हैपेंस आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, Right. राइट? आज हम संडे को पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं आपको बोल सकता था कि यार मैं
आज छुट्टी है मेरी और मैं ले भी सकता हूँ. हम्म. आई एम फॉर्चुनेटली एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ कि आई कैन. डिपेंडेंस है अभी. सेल्फ इंडिपेंडेंस है. बट हम्म. बट इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट फॉर मनी और इट्स नॉट फॉर फेम, इट्स डूइंग फॉर लार्जर पर्पज. राइट. तो कंफर्ट जोन में वो नहीं आता. देखो, हम्म. आज 100 करोड़ जाएंगे, मैं कंफर्ट जोन में फिर आ सकता हूँ कि नहीं मुझे क्यों करना है. हम्म. Right, but if you have to make an impact, I mean, there can be many reasons. Somebody may want to make a lot of money. That again is a valid reason. I'm not saying कि आप बॉस पैसे के लिए काम मत करो. राइट. Right. Right. तो but what I believe somehow is, if you have got one life and if you're not living to our potential, राइट. I think we are doing biggest disservice to ourselves. Forget justifying to others कि 70 hours a week करना चाहिए नहीं. I'm not going by the timing part, but I'm going कि यार आज मुझे अब जाके पता चल रहा है कि मेरे में भी कितना पावर है. गॉड हैज गिवन मी, एंड बिलीव मी, आई वाज अ सुपर ऑर्डिनरी गाय इन माय कॉलेज डेज. आई वाज अ सुपर डुपर, मतलब एवरेज पढ़ाई में, एवरेज बाकी सारी स्किल्स में, नेवर बीन टॉपर और एक्सील्ड इन एनी वन थिंग. राइट. एवरेज इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स. एंड टुडे imagine the world has given you everything that you could ever dreamed of multiplied by 100x. राइट. राइट. तो राइट. अगर मैं एवरेज में ऐसा सोच सकता हूँ, तो जो अच्छे लोग हैं जो ये वॉच करें, तो सोचो उनके साथ क्या होगा. Just because they are not exercising their full potential and they're becoming lazy, they are not valuing their own talent themselves. मतलब तो मेरा खाली वही है कि यार ये रिग्रेट लाइफ में नहीं हो कि व्हेन यू आर 70-75 और आप सोचते काश ये कर लिया होता. देखो, आप कोई मिस्टेक, कोई कंपनी खोलोगे, कुछ बनाओगे, कुछ पे काम करोगे, यू माइट फेल. राइट. राइट. बट ये जो फेलियर है ना, आप 2 साल 5 साल में भूल जाओगे. बट आपने कुछ नहीं किया और अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, वो आपको लाइफ लॉन्ग बहुत एक मतलब आपको एक कहीं ना कहीं याद दिलाती रहेगी कि आपने क्या मिस किया है. नहीं सर, योर स्टोरी इज अ ग्रेट स्टोरी ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी, जो आप लगातार अभी भी राहुल द्रविड़ की तरह इनिंग्स खेलते जा रहे हैं. आई देयर आर टू क्वेश्चंस ओनली दैट आई हैव विद मी नाउ. श्योर. वन, व्हाट्स योर फायर नंबर? आपने अपने लिए क्या फायर नंबर सोच रखा है? ये तो कोई नंबर ही नहीं So है. fire number, of course, people might say fire, but for me it was 100 crores because one idiot. उसने जो किया मैंने सब कॉपी किया है. But राइट. if you ask me technically, even 100 I would never need. मेरे लिए शायद लाइफ में 10 करोड़ भी बहुत बड़ी रकम है. राइट. मुझे गाड़ी खरीदनी नहीं है, घर, आई एम नॉट सो दिस थिंग. बट हाँ, कभी फैमिली को खरीदना हुआ तो देखेंगे. बट बॉम्बे में वो भी खरीदने की इच्छा नहीं है, तो कहीं भी टियर 2 टियर 3 सिटी में आराम से 2-3 करोड़ में अच्छा घर आ जाता है. बट राइट. दैट हैज नेवर बीन अ वेरी बर्निंग थिंग इन माई लाइफ कि खरीदना ही है. ऑफ कोर्स बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, वो है. बट उसके बाद उसके अलावा, बिकॉज आई वी ऑलवेज लिव मिडिल क्लास, एंड ठीक आज पैसा आ गया है, सब कुछ है, बट योर लाइफ डजंट चेंज ड्रामेटिकली. राइट. राइट. On the contrary, we always crave for home food, we always crave for street food, let's say. Right. आपको 5 स्टार से ज्यादा स्ट्रीट फूड खाने में मजा आता है, तो उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता है. सी, और क्या होता है, देखो, ठीक है मुझे घूमने का शौक है, बट घूमने के शौक में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होता है. राइट. ठीक है, यू कैन ट्रैवल बाई प्राइवेट जेट ऑल्सो, नोबडी स्टॉप्स यू. बट देखो क्या होता है कि आप इतने साल से आप जो चीज में यूज टू होना, सडनली आप चेंज नहीं हो जाओगे. राइट. राइट. अभी आप मुझे बोलोगे बॉम्बे दिल्ली बिजनेस क्लास से फर्स्ट क्लास में जाना है, माई माइंड, इवन दो आई हैव 1,000 crores ऑल्सो, आई माइट नॉट डू इट, बिकॉज मुझे वो समाउ पर्सनली मुझे वो सेंसिबल नहीं लग रहा है. अगेन एवरीबडी माइट हैव देयर ओन टेक. यस, बट मुझे यहाँ से यूएस जाना है, सपोज 18 घंटे की फ्लाइट है और पैसे हैं मेरे पास, मे बी आई फ्लाई बिजनेस क्लास, बिकॉज राइट. फाइनली इट इज अबाउट कंफर्ट ऑल्सो. मुझे मिल रहा है, बट वो 2 घंटे में कंफर्ट का पता नहीं चलता. इनफैक्ट कई बार आप विश्वास नहीं करोगे, 2 घंटे की फ्लाइट है बॉम्बे दिल्ली, बट आई प्रेफर राजधानी ट्रेन और ट्रेन फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली ओवरनाइट. उसमें 8 घंटे लगते हैं, बिकॉज दैट इज फार मोर कंफर्टेबल. सेकेंडली, आई कैन रीड बुक्स आराम से. जो आपने कहा अभी टाइम मिलता नहीं है टाइम मिलता थोड़ा. नहीं तो वो एटलीस्ट मिल गया. थर्ड एंड वन वेरी क्रिटिकल रीजन, मेरे घर से एयरपोर्ट 1-1.5 घंटा दूर है, और फिर दिल्ली में भी जाऊंगा तो 1-1.5 घंटा. ट्रेन स्टेशन आर फार मोर क्लोजर टू राइट. वेयर राइट. आई लिव एंड वेयर आई हैव टू गो. मुझे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है. तो आई ट्राई टू लुक फॉर सिंपलिस्टिक आंसर कि जहां, देखो, जहां जरूरत है तो वहां मैं 1 करोड़ भी खर्चा कर सकता हूँ. राइट. और जहां जैसे 15 करोड़ की गाड़ी मैं
खरीदने का प्लान बना रहा हूँ जो आपको बताया, बहुत लोग सोच सकते हैं कि यार ये बेवकूफ़ी है। हम्म। एक तो आप बोल रहे हो खुद को चलाना नहीं है, हम्म। और आप बोल रहे हो आप 15 करोड़ की गाड़ी खरीदोगे। पर मेरा मानना है कि अगर ये 15 करोड़ की गाड़ी 15 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर सकती है, हाँ, तो व्हाई नॉट। तो यार ये तो मतलब बहुत सस्ते में सौदा पट गया अपना, राइट? राइट, राइट, राइट। तो फिर क्यों नहीं? तो मेरे थॉट्स बहुत अलग हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यही आपको देखने हैं, दीज आर माय व्यूज, नॉट नेसेसरली द राइट व्यूज। नहीं, नहीं, वही राइटली सेट था, क्योंकि मैं बिनी बंसल का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि इनिशियल 1-2 मिलियन तक तो लगता है कि आज लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, लेकिन फिर जब 2 से 20 200 पे जाओ, आपके कॉर्पस हिट करता है, तो चीजें सेम रहती हैं। फिर तो ये है कि आप अननेसेसरी स्पेंडिंग कर रहे हो, पर लाइफ में जो चेंजेस होने थे वो हो चुके वो हैं हो चुके आपके। हैं बियॉन्ड ए पॉइंट, मनी इज नंबर्स। राइट, जो आपको 5 करोड़ 10 करोड़ में जो मेंटल सेटिस्फेक्शन आएगा, उल्टा 200 करोड़ में आप ज्यादा टेंशन में आ जाओगे, मालूम है आपको? राइट, लेने वाले इतने, जितना ज्यादा पैसा होता है ना उतनी टेंशन होती है ज्यादा फिर। राइट, तो राइट। यार हम पैसे कमाए थे कि टेंशन कम लें, उल्टा टेंशन उल्टा बढ़ गई। टेंशन ले तो फिर क्या? फाइनली इफ यू आर नॉट हैप्पी, no amount of money is going to help you then. So this brings me to my last question. What are some of the trends that you are excited about कि 2025 में आएंगे, especially related to finance industry, जहाँ पे आपको लगता है कि these trends definitely will I make think SEBI is about to bring new asset class. okay, ये एक म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में एक नई एसेट क्लास सेबी इंट्रोड्यूस करना चाहती है। 10 लाख मिनिमम कॉर्पस रहेगा उसमें। right, दैट लुक्स टू बी क्वाइट एक्साइटिंग, बिकॉज उसमें फंड मैनेजर्स के पास और फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। दे कैन गो एंड डू लिटिल मोर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, राइट, कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। तो दैट आई थिंक वी आर क्वाइट एक्साइटेड। ऑफ कोर्स जब पूरी डिटेल्स आएगी, लॉन्च होंगे, तभी पता चलेगा। But I right. think as a financial intermediary in this field, this is what we're looking for. Got it, got it. And sir, if somebody wants to engage with your firm, what's the best way to engage with the firm? They can directly reach out to you via website, or there is a different process to all together do it. Shrang, generally in these forums, I never like to market or नहीं, talk नहीं, about. but हाँ, but asking कि हाँ, I always believe मैं बुद्धा जी का एक बहुत अच्छा लाइन है, जैसे when the student is ready, teacher will appear. right, right, right. आई एम श्योर अगर आपके कोई भी व्यूअर्स रेडी रहेंगे तो अपना वो मुझे पहुंच पाएंगे, मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट दे हैव टू बी ट्रूली रेडी फॉर दैट, सो आई एम श्योर दे विल फिगर इट आउट। हाँ, आई थिंक जो पहले फाउंडेशनल बेस है सबको उसके ऊपर पहले डेफिनेटली काम करना चाहिए। वंस दैट इज बिल्ड अप, करेक्ट। then they can start looking at. And so finally, one last question, one more that I missed out. यस। If some young investors and freshers are watching this, uh, how would you advise them to start with their journey? Because we have talked about women professionals, people who already have a decent corpus. करेक्ट। But India में generally अगर Infosys और TCS की बात करें, 3-3.5 लाख की सैलरी से इन लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। तो इनके लिए क्या फाइनल टिप रहेगी आपकी साइड से? फाइनल टिप यही कि चूंकि आप यंग हो अभी, तो मैं हमेशा ये 25-25-25 रूल बताता हूँ। फर्स्ट 25 years ऑफ योर लाइफ लर्न, नेक्स्ट 25 years अर्न, एंड देन नेक्स्ट 25 years रिटर्न, राइट, राइट? तो आप 22, 23, 24, 25 हो तो जितना आप पैसा कमा रहे हो, इन्वेस्ट इन न्यू स्किल्स, लर्न मोर, राइट, ऑनलाइन कोर्सेज, कुछ भी आप करो तो आपकी जो स्किल्स है वो बहुत इंप्रूव होगी। इन्वेस्ट इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आई वुड से, दिस इज वन एरिया विच नोबडी टॉक्स अबाउट। राइट, आई एम श्योर एज अ पॉडकास्टर यू वुड know the value of communication skills, डेफिनेटली, right? So communication is the one of the biggest money making skills in the world. If you're a good communicator, you can make a lot of money. So राइट, invest in that skill, जो हमारे schools colleges में somehow इतनी डिटेल में नहीं सिखाई जाती है। और so अपने हेल्थ पे ध्यान रखो। आई मीन अगेन मेनी पीपल फॉरगेट एट 25 दे डोंट इन्वेस्ट इन द हेल्थ। वी एक्चुअली गेट बर्नट आउट। हम इतना दिमाग उसमें लगा देते हैं 18 दैट 70 आवर वीक कल्चर, और जो भी हम बात करें, हम इतना स्ट्रेसफुल रहते हैं, हम कंप्यूटर्स के सामने 18 आवर्स डे स्क्रीन, सो वी डू इट एट द कॉस्ट ऑफ आवर हेल्थ। राइट, तो आई वुड से इन्वेस्ट इन योर बॉडी, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, परस्यू अ हॉबी, फिजिकल हॉबी, जहाँ पे चाहे वो जिम हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे स्पोर्ट्स हो। राइट। 90% शशांक जो लोग जॉब फील्ड में एंटर करते हैं ना, वो स्पोर्ट्स खेलना भूल जाते हैं फिर। वेरी ट्रू सर। बहुत ही मुश्किल, टाइम ही नहीं मिलता है कहाँ हाँ, से। आप देखो सब लोग, ठीक है, हम
हम फ्लैट्स गुड़गांव में अच्छे अच्छे फ्लैट्स की बात करें जहाँ 10 करोड़ लगता है, अरे स्विमिंग पूल होना चाहिए, सारे जिम होने चाहिए, फैसिलिटी होने, हम पूरे साल में एक बार भी नहीं जाते उसमें। हाँ, कोई नहीं आता कोई सर, नहीं भैया। जाता है, स्पोर्ट है, खेलने वाला कोई नहीं कोई है। नहीं होता है, राइट। अच्छी फैसिलिटीज बन के रह गई लेकिन खेलने वाला कोई नहीं है। तो इफ यू डोंट हैव टाइम or health to enjoy this, then what is the point of all this money? राइट, So please invest in uh, your health. Please invest in your mind. Read books, podcast, learn course, learn a new skill, learn a new language if possible. And थोड़ा पैसा, if you're in the beginning, थोड़ा पैसा आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो। जो फर्स्ट एसआईपी है उसको कभी तोड़ना मत, चाहे वो 1,000 रुपए की हो, चाहे 500 की हो, चाहे 5,000 की हो। राइट, बाकी आपको एसआईपी जो करनी है करना, लेकिन इसको मत तोड़ना। जस्ट टू रिमाइंड यू कि व्हाट इज द पावर। Then I would say make your goals in life, right? And one goal which you should surely make is next 10-15 साल में आप क्या काम करना चाहते हो? Because राइट, today a lot of you might be doing the work which you may not like just because you did engineering and you did computer science and you are supposed to get into any company, Infosys or whatever, but आप अभी तक वो कर रहे थे जो आपके आसपास वाले आपको बता के कर रहे थे। राइट, यू डिडंट फॉलो योर हार्ट और पैशन, बट मे बी 15-20 साल बाद ये रेस से निकल के मुझे कुछ मेरा करना है, मे बी इट कैन बी एनी फील्ड अनरिलेटेड टू योर बैकग्राउंड, राइट, तो वो मुझे करना है। और उसके लिए मुझे फायर, जो आपने बोला फायर नंबर, वो आप अपने खुद का डिसाइड करो आफ्टर 20-25 years। एंड अगेन व्हेन आई से फायर नंबर, फायर डजंट मीन यू विल सिट एट होम एंड रिटायर। फायर मीन्स you will do what you wanted to do in life. Okay. राइट, Today you may not have that luxury or choice, but eventually you would like to do. Second is मेक अ बैलेंस। ऐसा नहीं है कि ये जितने भी हम पॉडकास्ट देखते हैं सब बोलते हैं सेव करो, स्पेंड मत करो, तुम्हें भी रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदनी है। यू शुड नॉट कि जस्ट बिकॉज आई वांट टू बाय रोल्स रॉयस कार इट शुड बिकम योर गोल टू। इफ यू राइट, वांट हार्ली डेविडसन और यू वांट एनीथिंग, मेक दैट गोल एंड वर्क टुवर्ड्स इट, बट मेक श्योर यू एंजॉय योर लाइफ टुडे ऑल्सो। बहुत सारी चीज आप 30 में कर सकते हो जो 60 में नहीं कर सकते हो। राइट, ट्रैवल द वर्ल्ड, बैक पैकिंग, पार्टीज में जाना, एंजॉय करना, म्यूजिक, कॉन्सर्ट्स। बहुत लोग बोलते हैं कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में अगर 1 लाख रुपए नहीं लगाए होते, एसआईपी कर दी होती, आज मेरे पास 50 लाख रुपए है और मैं मुझे एंड आई कैन अफोर्ड टू बाय अ फ्रंट रो सीट, पर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, सपोज हाँ, राइट, इन द सेंस मैंने कभी सुना ही नहीं है तो कहाँ से। बट 30 में अगर आपका इंटरेस्ट और 1 लाख रुपए भी लग रहे हैं तो प्लीज जाके आओ, क्योंकि राइट, वो जो आप उस वक्त करोगे ना वो 50 में नहीं कर पाओगे आप। राइट, तो मेक अ बैलेंस, और छोटे छोटे खर्चों में कभी स्ट्रेस मत लिया करो। हम लोग प्रॉब्लम क्या होती है शशांक, हम लोग जो लाइफ के बड़े खर्चे होते हैं, घर खरीदना है, राइट, उसमें हम इतना बड़ा नहीं सोचते हैं और उसमें हम गलती कर जाते हैं और फिर उस चक्कर में हमें लाइफ में हर जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। राइट, तो अगर आपकी क्लैरिटी होती और आपने सोचा था कि यार मैं घर नहीं लेता हूँ क्योंकि उसके 1/4 रेंटल्स में मेरा सारा खर्चा निकल सकता है, हम्म, तो व्हाई डोंट आई डू दिस एंड एंजॉय ऑन अदर पार्ट ऑफ लाइफ। सो एंड साल में कम से कम, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, आई एम श्योर योर व्यूअर्स आर मस्ट बी वर्किंग इन आईटी फील्ड और कनेक्टेड विद आईटी, राइट, stress is very high simply because you are connected to machines all the day. राइट, I see a lot of people who are connected to calls, online Zoom calls throughout the day. To me, that is the highest amount of stress. अगर मुझे 3 घंटा Zoom पे मीटिंग करनी पड़ेगी ना, I'll go bonkers. हम्म, और Google Meet और Microsoft. Then I would strongly recommend साल में minimum 2 holidays, minimum a week's break राइट, आपको लेने ही चाहिए। 15 days you should be out of this. राइट, Spend time with your family. One more suggestion I would like to give. A lot of you are newly married, young kid. Uh, please give some time to your kids also. वरना पैसे तो हम सब बना लेंगे लेकिन ये टाइम हम कोई खरीद नहीं पाएंगे, राइट, राइट। मेरे केस में मैं लकी भी रहा हूँ, हमारी जॉइंट फैमिली थी तो हमने बहुत अच्छे से मैनेज भी कर पाया। बट इन हाइंडसाइट कभी कभी रिग्रेट भी होता है बिकॉज मैंने बहुत सारा टाइम, मैंने, मेरे ब्रदर्स ने, हमने सबने, ये जो हमारी बेबी है एटिका, जिसको जिसको भी हमने हम्म, प्यार से बनाया, उसमें भी हमने इतना टाइम लगा दिया कि हम शायद कहीं ना कहीं वहां पे उतना टाइम नहीं दे पाए जो देना चाहिए था। बट राइट, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, ट्रेड ऑफ करने पड़ते हैं, एंटरप्रेन्योर को करने पड़ते एंटरप्रेन्योर हैं। को करने पड़ते हैं। बट आप अगर मैनेज कर सको तो डोंट रन ओनली आफ्टर मनी और ओनली आफ्टर जॉब सक्सेस। थोड़ा सा अगर आप मैनेज करके यहाँ भी कर सकते हो, आई थिंक दैट विल बी वंडरफुल।
This is what I can tell you because I've gone through that in last 10-15 years. And Hmm. by meeting thousands of investors, when I see their stories, तो मुझे एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उन सबसे बात करके, तो वही इसीलिए मैं आपको जो भी बताया सब प्रैक्टिकल मैंने लाइफ में देखा, वही शेयर किया है मैंने आपसे। नहीं, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दीज नगेट्स ऑफ विजडम। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट भी है समझना कि बैलेंस कैसे आप स्ट्राइक करोगे दोनों चीजों के बीच। एंड दिस एपिसोड वाज ट्रूली अ मास्टर क्लास। आई थिंक पीपल हु विल वॉच इट एंड व्हेन दे गो इनटू 2025 वो फाइनेंशियली और प्रूडेंट होंगे। थैंक यू अगेन सर। थैंक यू शशांक, प्लेजर।